all of you. So now I would like to know from the audience, that is you people, who are the major stakeholders in this complete process. First of all, I would like to introduce Chetan sir here. Chetan sir is also joining me today. So today, Chetan sir is also joining me, and we would be giving you some good insights over the exam, how to nail this exam, what you needs to be done. Because see, every one of us knows that one of the biggest exam in India, which provides us good opportunity to not only to serve the nation, but also have a good social recognition, right? In my opinion, there are only three jobs in India. Either you have be the PM or the CM or DM, right? So no other private sector job can provide you the satisfaction which uh, civil service can give you. Having said this, since the competition is high, then we must understand that what we should do to at least get into the list first, right? Don't target top three ranks from the initial stage itself, right? Although we say that we must aim high, but I would suggest first of all our goal should be to be in the list, because once we are there, then we can improve the rank, right? Although we would not prepare with the motive to be in the last three, right? We would prepare with the motive to be in the top, but at least let us do those things which will get into the list first. अभी तुम्हें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा जो शायद तुम लोगों ने गौर ना करी हो, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. हाउ मेनी ऑफ यू would be writing the first mains in 2020 and 2021, by the way? Are there aspirants those who would be writing first attempt, first mains, I mean? I think Okay, there are more than 15 students. Okay. right, most of you are the first main. So तुम ये समझ लो कि Okay. this is going to be a boon for you, what I am going to tell you, ठीक है, और sir would discuss with you. This would be immensely helpful. अब सबको पता होगा कि अभी recently 2 days back, accidentally second, but according to me it will be first. चलो, good Adhiraj. So everybody of you would be knowing अभी अभी मार्कशीट आई है, ठीक है. सो तुम लोगों के कुछ फ्रेंड्स भी होंगे जिनका सिलेक्शन हुआ होगा, तुम लोगों ने मार्क्स देखे होंगे, सब कुछ देखा होगा, राइट? लेट अस सी. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मेरा ऑब्जेक्टिव एक ही रहता है, सबसे पहले रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस एस्पिरेंट के अंदर होना चाहिए. और वो कैसे हो सकता है? इंट्रिंसिकली यू कुड बी मोटिवेटेड. तुम्हें कभी किसी पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा हो तो तुम्हारा मन होगा कि भाई एसपी बन के मैं उसे सस्पेंड करूंगा. This could be the motivation. And external motivation is wherein faculty should motivate you in a very logical manner, right? तो अब मैं तुम्हें मार्कशीट दिखाता हूं. देखो, जिन्होंने मेंस निकाला है, एंड दिस कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट, ठीक है. अब देखो, अब ऐसे देखो, हर बार यूपीएससी का ट्रेंड चेंज करता है. वी शुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट दैट ट्रेंड. कभी ये लोग ऐसे के मार्क्स दिल खोल के देते हैं, और कभी GS 3 में देते हैं, कभी इस बार एथिक्स में 150, 140, 130 is been the common mark that has been seen among the selected candidate and those who appeared in the interview. But still, few people have managed to get very poor marks as well with their hard effort, right? So people have to make good amount of effort to even score low marks. इतनी जल्दी नहीं आते हैं. तो 90, 100, 80 नंबर भी आए हुए हैं एक के, जिससे मेरी बात हुई, ठीक है. सो ये अपनी चीजें हैं. ऑप्शनल में इस बार अक्रॉस द बोर्ड एवरी ऑप्शनल, और उसमें भी ज्योग्राफी अगेन हैज बीन द नंबर वन वेयर it has ruined the career of many people. I don't know why UPSC has been so adverse to geography optional, because there is no reason to it. Civil servant should be good in geography, right? So अब पता नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन ज्योग्राफी में बड़े पुअर मार्क्स रहे हैं. चलो, अब एक स्क्रीन ये है जिसमें देखो, लिख लो भले ही ये मार्क्स, या फिर एनालाइज करो. ऐसे के 122,
एवरेज मार्क्स इस बार, जबकि ये मार्क्स में अभी भी स्कोप है 140 जाने का। तो दिस कैंडिडेट हैज डन सम मिस्टेक इन द फिलोसफिकल वाला एसे, ठीक है। ही स्पोक टू मी आफ्टर राइटिंग एसे, और इसका जबकि 2017 में दिस गाय ओनली स्कोर्ड 155 मार्क्स इन एसे एंड दिस ईयर ही हैज गॉट 122 मार्क्स। ओके, फिलोसफिकल एसे की वजह से लोग गड़बड़ा रहे हैं। जनरल स्टडीज 99 मैं कहूंगा फिर भी थोड़ा स्कोप है। स्टडी जनरल जीएस 2 में थोड़ा सा स्कोप है, जनरल स्टडीज 3 में इट इज ओके काइंड ऑफ स्कोप है अभी भी। जीएस 4 में अगेन दिस गाय हैज स्कोर्ड लेस मार्क्स एज कंपेयर टू अदर एंड फॉर सम रीजन आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज ठीक है इसका एथिक्स का अप्रोच। नाउ सी दी ऑप्शनल वाला पार्ट, 110 एंड 127 नॉट वेरी एनकरेजिंग मार्क्स। ऑप्शनल कितना नंबर हो गया? 237, जबकि 250 would have been a good performance this year, not outstanding. People have gotten 280, 290 as well, right? Okay, Anup, psychology optional has got highest marks of 306. Do you know who got 306 marks? If you can tell me the name. Okay, rank 9, so that is nice. If 306 is really very nice marks. Okay, तो अब ये देखना, एंड पर्सनैलिटी टेस्ट आई वुड से 175 इज ओके। नाउ लेट अस सी अनदर स्क्रीन, सिर्फ इधर ही गौर करना। देखो मेंस का कट ऑफ कितना है? 751, मेंस का कट ऑफ 751। एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, मेंस और इंटरव्यू में जो फाइनल सिलेक्शन होता है वहां पे गैप जो आता है वो 210 नंबर का होता है। If you just clear the cutoff in mains on the spot, अगर x है तो इंटरव्यू में you need to get around x plus 210 or 212 marks to be the last person in the selected candidate. Okay, ये हमेशा ध्यान देखो, ये फिगर्स ना एक इंसाइट देंगे कि कहां पे कैसा परफॉर्म करना है और कहां पे हम कैसा परफॉर्म कर। इफ वी डोंट नो द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जाम, we would keep on running without any objective. We should know कहां पे कितना स्कोप है, किधर कितना ज्यादा एफर्ट देना है और कहां पे अपने आप को रोक के रखना है। That is why I am telling you all this, and this is very insightful, which people generally miss. Just notice the cutoff of मेंस एग्जाम 751। एक काम करते हैं, मैं ना ये बोर्ड में लिखता हूं, रुको, तब तुम लोग को और अच्छा आइडिया आएगा। थोड़ा टाइम पास भी तो करना चाहिए जब हम मिल ही रहे इतने दिनों बाद। 751 एंड 961, देखो कितना गैप है? 210 मार्क्स। ओके, 751 961, मेंस 751, फाइनल कट ऑफ 761। ठीक है, अब जिस कैंडिडेट का हम मार्कशीट देख रहे थे, कैंडिडेट 1, क्या किसी को मालूम है उसके फाइनल मार्क्स कितने थे? ओह सॉरी, 961, सॉरी। जिस कैंडिडेट का हम देख रहे थे उसके फाइनल मार्क्स कितने थे? वेरी गुड, 963। वन ऑफ द कैंडिडेट हैज नोटिस्ड विदाउट मी पॉइंटिंग इट आउट। अब देखो 2 मार्क्स का डिफरेंस है फाइनल कट ऑफ में। ठीक है, कि मतलब ये है कि लोकल बस निकल ली थी, पीछे से पकड़ ली गिरते पकड़ते। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहीं कहीं पे दिक्कत रही। अब मुझे ये बताओ, एक गैस मारो, चलो इंटेलिजेंट गैस, इसकी रैंक क्या रही होगी? इसकी रैंक कहां पे होगी? मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूं, चलो। 600 to 700, 500 to 600, 400 to 500, 300 to 400। ए बी सी डी, ऑप्शन बताओ जल्दी जल्दी। अभी प्रीलिम्स दिया है सब लोगों ने, ऑप्शन में तो तुम सब महारथी हो भाई। प्रीलिम्स के टाइम में जब क्वेश्चन पूछते हैं तो सब यही कहते हैं ऑप्शन दो। डी ऑप्शन। एक ने बी बोला है, उदय ने। कोई अभी चेक ना करे, हाँ,
यूपीएससी की मार्कशीट वगैरह की कितने आए मे बी। अरे भाई रोहन, जब तुम्हें फाइनल मार्क्स ही बता दिए तो इंटरव्यू में क्या डिपेंड करेगा। आई होप भगवान तुम सबका प्री क्लियर करे। यू आर जस्ट सेइंग द अपोजिट। ए इज द राइट आंसर। 300 to 400। नाउ दिस इज द मैजिक। यही है गेम यूपीएससी का। देखो ठीक है, 2 नंबर से तुम अंदर हो सिर्फ इन जनरल कैटेगरी, एंड यू आर गेटिंग द रैंक बिटवीन 300 to 400। अब अगर सोचो कि कहीं पे भी थोड़ा सा पुश लग गया था, और कितनी जगह मैंने तुम्हें दिखाया कि स्कोप था, फिर से देखते हैं। देखो एक बार, अब यहां देखो कितनी जगह स्कोप है। एसए में स्कोप है 140 वुड हैव बीन दी ओकेइश नंबर। 18 नंबर का स्कोप इधर है, मिनिमम बता रहा हूं तुम्हें, 18 नंबर का। जीएस 4 में मैं कहता हूं, देखो मैं हमेशा ना एवरेज को ही सुप्रीम समझता हूं, राइट। आई डोंट लाइक पीपल दोज हु आर आउट ऑफ द वर्ल्ड, एंड इवन दोज हु आर कमिंग फ्रॉम दी लेट्स से नोवेयर, जिन्हें कुछ पता ही ना हो और वो भी निकालेंगे। सो फॉर मी एवरेज इज द सुप्रीम। तो मैं एवरेज नंबर ही लेके चलता हूं, और यही टेक्टिक्स मैंने तुम्हें फिल्म्स में भी शेयर करी थी। देखो कि लेमैन से सोचोगे तो निकल जाएगा, और मेंस में भी यही करना है। 18 नंबर यहाँ पे, 10 नंबर एथिक्स में, 18 10 28। यहां कुल मिला के 3 पेपर में मान लो 10 नंबर, 2-2.5 नंबर का हर पेपर में, ठीक है, जो कि मैं बहुत एवरेज बता रहा हूं। 28 और 10 38। और यहां पे मान लेते हैं 237 इसके 250 होते, राइट। 38 और 12 मान लिए 50। अब 50 नंबर के डिफरेंस में ही वुड हैव बीन इन अ वेरी गुड सर्विस ऑफ टॉप 3 सर्विसेज। जबकि अभी भी हमने कोई ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लिया है विच कुड हैव नॉट बीन पॉसिबल दिस ईयर। देखो ट्रेंड तो इसी साल का पकड़ेंगे, राइट। लेकिन गलतियां हुई हैं तो यूपीएससी विल पनिश। और गलतियां क्यों हुई हैं? फिलोसफिकल ऐसे में ही डाइग्रेस्ड। he could not write a logical essay or coherent essay in philosophical topic। तो ओवरऑल क्यों बताया मैंने ये सब तुम्हें, कि 2 नंबर से अंदर हो और यू कैन बी इन टॉप 300। कॉन्फिडेंस आया नहीं आया है? बिल्कुल आया होगा, राइट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कॉन्फिडेंस नहीं आए, क्योंकि हम वो बात करते ही नहीं है जिससे कॉन्फिडेंस डूबे। भैया हम बात ही वही करते हैं जिससे कॉन्फिडेंस आए, ठीक। अब एक और देख लो फिर। ये हम सोचते हैं कि ऐसा, दिस इज द मार्कशीट ऑफ प्रदीप सिंह, ठीक है। अब देखो 140 ओके मार्क्स, 108 हमने इतना भी मार्जिन नहीं रखा कि भैया चलो टॉप नहीं करना है। 115 101 157 जो कि एथिक्स में आए हुए हैं। हमारे स्टूडेंट्स हैव गॉट 145 148 150। नाउ दिस इज द रियल डिफरेंशिएटर। ऑप्शनल मार्क्स आर 148 and 145, अगेन 300 क्रॉस्ड। इसीलिए कहता हूं जो ऑलमोस्ट 300, इसीलिए कहता हूं कि ऑप्शनल पे पकड़ रखो थोड़ी बहुत। जीएस एक स्किलफुल अप्रोच से हो जाएगा, राइट। देन पर्सनैलिटी टेस्ट 145। तो अगर यहां थोड़े मेंस में कम भी हो गए 10-15 नंबर, और इफ योर इंटरव्यू इज गुड, यहां का 10-15 मार्क्स का मार्जिन बचता है। देखो ठीक है। सो दिस इज परफेक्टली ओके, दिस यू नीड टू डू वेल। ऑप्शनल पे ध्यान दो, क्योंकि ऑप्शनल में लोग डबल डिजिट में भी नंबर लेके आए हैं एक पेपर में। तो उससे क्या होता है, सारा का सारा चांस खत्म हो जाता है। तो दिस मच क्लैरिटी यू शुड हैव अबाउट यूपीएससी, दैट हाउ वी शुड नेल इट, राइट। तो one thing is clear, with a decent approach in GS, यूपीएससी कैन रिवॉर्ड अस डिसेंटली। क्योंकि देखो टॉपर के भी मार्क्स उसी रेंज में, बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर नहीं है, राइट। एक चीज हुई, ये स्कोप किधर है पता लग गया, इससे कहां कहां पे स्कोप है, राइट। नाउ हाउ कैन वी स्कोर
good marks? This should be the question that you must be asking yourself. Okay? ये तुम्हें हमसे नहीं पूछना है, तुम्हें अपने आप से पूछना है और फिर तुम्हें इसका आंसर मिलेगा. दो ही चीजें ध्यान रखना, मेनली कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन. अगर कंटेंट तो देखो फर्स्ट सीडी हो गई, प्रेजेंटेशन उसके बाद आता है, राइट? सो बोथ आर दी साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. ठीक, जहां तक, और ये कंटेंट का रोल ज्यादा किसमें है? ऑप्शनल में. जीएस में भी है, बिल्कुल है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना ऑप्शनल में है. टोल्ड यू विद रिस्पेक्ट टू जीएस, गुड कंटेंट शुड बी दी ऑब्जेक्टिव, कि जो हम रिप्रोड्यूस कर पाए. आजकल अप्रोच क्या है? टू गो फॉर एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट. एंड एज आई टेल पीपल, content is like alcohol, it must be taken in moderation, right? If you take more of it, you know what happens when we are in inebriated condition, right? We could not even walk in a very straight forward manner, right? So must be taken in moderation. Ab what UPSC is going to check, relevant content है, ठीक है? They are not looking for superficial personalities. They will check your depth of understanding. How depth of understanding will be checked? When you write relevant answer and diversified answer. How the answer will become diversified? If you know how to connect various areas, what to connect, where to connect. As we say in cricket, no, that more than the time, the game of the cricket is about the timing. So the timing has more importance than the time in cricket. Similarly, placing of the content is more important than the content itself. If you don't know where to place the content, you will lose every edge that you can get because of the content which is there in your head, right? Connectivity आएगा, और उसके बाद you must be aware about the how governance and government and the system works. What is the demand from a bureaucrat which is being reflected in ethics paper? ठीक है? As I told you before as well, they do not need completely ideal people. Okay, and in one of the statement made by the ethics faculty or the director, I don't know the exact person, of the Labasna, in fact he was found quoting that ethics paper is more about the language skills than the ethics itself. Okay, so you have to be a bit diplomatic, a bit mature in this paper to get selected. So ये तो एक insight था, right? Now, since we have been sitting to discuss about one of the program that we have launched, and that too on the demand of the people, those who are finding it little bit difficult to manage everything in this stipulated amount of time. Okay, कि ऑप्शनल भी करना है, कंटेंट भी करना है, आंसर राइटिंग ऑप्शनल का भी करना है, आंसर राइटिंग जीएस का भी करना है, और कुछ को तो लैंग्वेज भी करना है. अभी कुछों के लिए लैंग्वेज पेपर निकालना ही बड़ा मुश्किल है, पता है? कुछों के लिए लैंग्वेज पेपर ही एक बहुत मुश्किल बात बन जाती है. सो द प्रोग्राम इज मेंस ब्रेनस्टॉर्मिंग. अब देखो है क्या. इन लास्ट सेशन आई ऑल्सो डिस्कस कि यूपीएससी मेंस जो है इट इज अ प्रोजेक्टिव टेस्ट. व्हाई? बिकॉज इट इज अ स्पीड टेस्ट. So projective test is somehow we would be projecting our personality to the examiner, whether can we sit in the post of DM or the SP, right? Now भैया अब अगर यही पेपर 6 hours का होता,
वी वुड हैव बीन वाइज इनफ टू आर्टिकुलेट आंसर्स इन अ मैनर कि हमें अच्छे नंबर मिले। अब सिर्फ 6 मिनट मिलने 10 मार्कर के लिए, 6 से 7, 10 से 11 मीन्स के 15 मार्कर के लिए। तो एक बात सब लोग समझ लो कि जो नेचुरल तुम्हारा थॉट प्रोसेस होगा ना, नेचुरल थॉट प्रोसेस, only that will reflect in the mains. You won't be able to think answer there and then. ये कभी मत सोचना कि 25 चीजें रट लूंगा तो वहां पे आ जाएंगी, जरूर कुछ ना कुछ आ जाएंगी, लेकिन वहां पे मोर देन मेमोरी इट इज द क्वेश्चन ऑफ हैबिट एंड प्रैक्टिस, बिकॉज मेमोरी ऑल्सो नीड्स टाइम टू रिकॉल। कितने बार तो स्लिप ऑफ द टंग फिनोमिना हो जाता है कि रिपोर्ट का नाम लिख रहे हैं और वो रिपोर्ट ही याद नहीं आ रही है वहां पे, फिर कोई दूसरा रिपोर्ट का नाम लिखना पड़ता है, राइट? क्यों? क्योंकि हमें पता है कोई भी रिपोर्ट का नाम लिखो तो चलेगा, रिपोर्ट तो इतनी सारी पढ़ी है हमने, इंडेक्सेस इतने सारे पढ़े हैं। और वैसे भी आज डॉक्टर अरविंद विरमानी कह रहे हैं हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक गिर रही है। तो आफ्टर ऑल दीज ईयर्स डॉक्टर अरविंद विरमानी इज एनलाइटनिंग इफ्री और द बॉडी विच कम्स आउट विद द हंगर इंडेक्स कि हंगर इंडेक्स इज नॉट एट ऑल अबाउट द हंगर, they are outrightly rejecting the hunger index at all. ठीक है, so it is good. Hunger index is not about hunger, democracy index is not about democracy, and no index is about nothing. यूपीएससी भी पता नहीं हमें तंग कर रही है बार बार इंडेक्स पूछने में। They should have such people in their team, तो हमारा भी काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखो ये चीजें ध्यान रखना, इसीलिए नेचुरल थॉट प्रोसेस बनाना बहुत जरूरी है, राइट? जो नेचुरल थॉट प्रोसेस एक बार बन जाएगा, आंसर उतना स्मूथली लिखा जाएगा। अदरवाइज मालूम है क्या होगा? इफ यू विल लोड योर मेमोरी विद टू मच ऑफ कंटेंट, you will try to recall from your memory, long term memory, it will take certain time and you will miss on upon some crucial questions। 3 4 5 क्वेश्चंस में या तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे होगे कंटेंट के साथ या ब्लैंक छोड़ के आ रहे होगे, यही होता है नॉर्मली। इट इज द स्टोरी विद 80% ऑफ द गुड कैंडिडेट्स। ओके, देखो अब जैसे आई एम गिविंग यू स्मॉल एग्जांपल, मोर इनसाइट वुड बी गिवन बाय चेतन सर टुडे, बिकॉज वो अच्छे से प्रोग्राम को डिजाइन कर रहे हैं, राइट? सो दैट इट हेल्प्स यू ऑल 2020 और 21 पीपल इमेंसली। वी in fact I do not believe and the whole team do not believe in just running the program for the sake of running it। ठीक है, कहीं कुछ गलतियां जरूर होती होंगी, आई अग्री विद दैट, बिकॉज वी आर नॉट परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट, राइट? तो लेकिन ब्रॉडली इंटेंशन इज ओके, एटलीस्ट यू कैन बी एश्योर्ड ऑफ इट। हाँ सचिन पूछो। अच्छा, लेट मी also say a word about the team. You must have met most of the members. Chetan sir is already sharing the screen with me, so today I am blessed to have him for you people, right? Then we have Shekhar sir in the team, right? We have Mukesh sir in the team, right? And it is the question of gender parity. We cannot have all the males, otherwise we would be blamed of having gender biasness. So we also have Ravika ma'am in the team, right? For modern history mains along with spectrum, which book we must follow and what about Subhash Kashyap for polity? अच्छा सचिन थोड़ा सा वेट करो, ये सारे आंसर अभी हो जाएंगे, तुम्हें कहाँ से क्या करना है, ठीक है? डोंट वरी। चेतन सर यू मस्ट टेक दिस क्वेश्चन, हिस्ट्री इज योर फोर्टे, ठीक है? तो अब मैं तुम्हें ना, ये तो टीम हो गया देखो हमारा। अच्छा मैं भी हूँ, कुछ लेक्चर्स में मैं भी रहूंगा। यू वुड से आई विल नॉट बी देयर, ठीक है? तो योर फिल्म सेशन हेल्प मी अ लॉट सर, आई एम गेटिंग अराउंड 120 इन फिल्म्स 2020। थैंक यू सर। गोकुल रेड्डी, अरे भैया थोड़े 15-20 नंबर किसी 2-4 लोगों को बांट दो, तुम तो सारे ही लूट लाए, इसलिए थोड़ी लिया था सेशन। दिस प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम 26 विजय, 26, ठीक है? अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, उसके बाद चेतन सर विल टेक द प्लेटफॉर्म एंड देन आई वुड सबमिट। ओके, जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज इन न्यूज, ओके?
two extremes we should not touch. Two extremes. One, we are blank. Two, we have done PhD. These are two extremes, right? You must have a fair amount of idea how things are working, how the system is working, how governance is working, who all are the stakeholders. ठीक है? तो अभी जब जो न्यू लॉ आया है, तो देखो क्वेश्चन यहीं से उठ के आता है सेकंड एंड थर्ड पेपर में और फर्स्ट में सोसाइटी से भी, राइट? जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है 1-1.5 साल में वो आएगा, वहीं से क्वेश्चन बन के आएगा। और वो जब तक करंट अफेयर्स के आर्ग्यूमेंट को अपने पेपर में नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, बिकॉज देन यू आर giving an impression to the examiner that although I know things in their static form, but dynamically I am not an evolved person. I am not aware about my surroundings. I don't know about what is happening in my country and worldwide, right? So I am not evolved, taking into account the current happenings in the country and worldwide. So this is a bad impression, right? तो अब क्या करना है हमें, जो नया लॉ है यू मस्ट नो अबाउट द आइडिया। देखो एक बार अगर पता लग जाए ना कि क्या चीज कहां से कनेक्ट है, फिर खुद ही से सोचना कि उसकी इन्फर्मिटीज क्या है, क्या उसकी वीकनेस है, खुद ही आर्ग्यूमेंट दे देना, वो सही होगा लॉजिकल। कोई भी कमिटी अगर बनी है किसी चीज के लिए, पहले 10 आर्ग्यूमेंट अगर खुद सोचोगे ना, तुम देखोगे कि वो 5 तो वहां पे है ही है, बिकॉज एवरीबडी लव्स टू थिंक लॉजिकल इवन इफ दे डू नॉट लव टू एक्ट लॉजिकल। सोचने में पैसा तो लग नहीं रहा है भैया, एक्ट्स के तो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, राइट? वी वुड लव टू एक्ट इन अ मैनर व्हिच वुड इंक्रीज द फेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर अस, बट थिंकिंग इज कंप्लीटली फ्री, राइट? सो वी ऑल लव टू थिंक लॉजिकल एटलीस्ट, ओके? तो हमें यह पता है कि जो रिसेंट चेंजेस लॉ में हो रहे हैं, इट इज एनकरेजिंग फॉर डायरेक्ट सेलिंग। देखो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कैसे चीजों को समझना है हल्के हल्के से। इट एनकरेजेस डायरेक्ट सेलिंग बाय फार्मर्स, राइट? एंड इट फ्री फार्मर्स। अभी जो भी चैट में लिख रहा है मैं थोड़ी देर में देखता हूं, अदरवाइज तो बार बार ब्रेक होते रहता है, ठीक है? एंड इट इज गोइंग टू फ्री द फार्मर्स फ्रॉम द क्लचेस ऑफ एपीएमसी, राइट? एंड इंसेंटिवाइजेस देम टू प्रोड्यूस क्वालिटी क्रॉप। अब हमें 2-4 चीजें तो पता ही होनी चाहिए, सही? बस ये नहीं कि डेफिनेशन लिख दी और सिलेक्शन हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कहीं वैल्यू एडेड मटेरियल लिया और डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ऐसी बेहतरीन डेफिनेशन पढ़ी कि जिसने कंसेप्ट भी इजाद किया होगा वो भी उतनी बेहतरीन डेफिनेशन नहीं लिख पाता, और वी विल कम थिंकिंग दैट नाउ वी आर गोइंग टू टॉप दिस एग्जाम। ऐसा कभी नहीं होगा, डेफिनेशन के बेसिस पे सिलेक्शन कभी नहीं होगा, राइट? तो इतना हमने सोचा, और अभी ये तो न्यू लॉ जो है वो सजेस्ट कर रहा है, राइट? एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, जो एफपीओज होते हैं, ऐसे ही तुम्हारे नोट्स होने चाहिए। देखो जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, दे आर, अब देखो कुछ नया लॉ सजेस्ट कर रहा है तो कुछ इन्फर्मिटी होगी। तो इन्फर्मिटी क्या होगी, जितने भी फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं अभी वो लोग क्या करते हैं, उन्हें परमिशन चाहिए। किसकी परमिशन चाहिए? मेरी तो चाहिए नहीं होगी भाई, एपीएमसी की चाहिए होगी, ठीक है? उनके अपने अपने रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन में, जिस एपीएमसी का जितना जुरिस्डिक्शन है उस रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन में परमिशन चाहिए होगी बिफोर एंटरिंग इनटू एनी डायरेक्ट सेलिंग। तो क्या हो रहा था, एक तरीके से कंट्रोल्ड करी थी सारी एक्टिविटीज। अच्छा दूसरी चीज, एक चीज और बता दो, मेंस में इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन इज आल्सो अ चैलेंज। ऑलवेज read question properly in half a minute or 1 minute and try to understand the tone and tenor of the question। कि अगर निगेटिव क्वेश्चन, निगेटिव टोन में क्वेश्चन है ना, तो पहले तुम उसकी थोड़ी निगेटिविटीज बताओगे फिर पॉजिटिविटीज बताओगे। अगर पॉजिटिव टोन में क्वेश्चन है तो पहले पॉजिटिविटीज बताओगे, फिर ये लिखोगे yet there are few challenges which needs to be taken into account and which are as follows 1 2 3, और फिर जाके उसको कंक्लूड करोगे।
लेकिन आंसर बैलेंस जरूर करना पड़ेगा, भले ही वहां पे कमेंट दिया हो, डिस्कस दिया हो, कुछ भी दिया हो। ओके, तो ये स्ट्रेटजी जरूर बनाना। अब तुमने ये एक एस्पेक्ट समझ लिया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, तो अब क्या हो रहा है, इसका मतलब एफपीओज आर गेटिंग डायरेक्टली एंगेज्ड विद दी होम इन मार्केटिंग एक्टिविटीज। अब तुम खुद सोचो, अगर ये चीज हम बहुत एक किसी भी चीज में पढ़ रहे होते, नोट्स में पढ़ रहे होते, अदर देखो न्यूज़पेपर इसीलिए अच्छा होता है, दे बिल्ड अ कॉन्टेक्स्ट, राइट। मैगजीन में क्या होता है, दे आर ट्राइंग टू गिव यू मोर एंड मोर कंटेंट, हमारा हो किसी का भी, तो उसमें ना वो इंटरेस्ट नहीं बन पाता है, राइट। अब तुम अगर इसे रट रहे होते ना, तो पहले ही बर्डन हो जाता कि यार आज ये पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया और ये अब पता नहीं कैसे रिप्रोड्यूस होगा। अभी जैसे जैसे मेंस पास आएगा ना, जैसे प्रीलिम्स में तुम लोग को डाउट हो रहा था कि सर पढ़ तो सब लिया, वहां पे याद आएगा नहीं आएगा, अभी मेंस में तो ये और ज्यादा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि मेंस इज ऑल अबाउट रिकॉल और प्रीलिम्स तो जो था वो रिकॉग्निशन के लिए था, ठीक है। तो समहाउ अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ फिर, गवर्नमेंट ने क्यों लाया, बिकॉज गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है, किसको, टू फार्मर्स, राइट। हाउ, so that they can engage with whom, processors, retailers, right, and exporters। अब ये देखो क्या हो रहा है, लॉजिकल फ्लो बन रहा है चीजों का। अभी कुछ डायमेंशन अभी इसमें और हैं विच वी वुड लेट यू नो जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा, बट ये अगर फ्लो बन गया ना अगर, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कैसा भी क्वेश्चन आए, योर आंसर विल स्टैंड आउट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर। और अपना ऑब्जेक्टिव यही है जो हम मेंस टेस्ट सीरीज में भी बताते हैं लोगों को, इस प्रोग्राम के जरिए भी बताएंगे कि समहाउ यू हैव टू ट्राई टू मेक योर आंसर डिफरेंट। तो टू से अ वेल फिल्ड माइंड इज डिफरेंट फ्रॉम वेल फॉर्म्ड माइंड, राइट। तो ये चीजें सीखो। और सरकार कह रही है पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, अरे भारत पढ़ ही तो नहीं रहा है, भारत तो रट रहा है। अगर पढ़ता तो हम कहां पहुंच गए होते अभी। और पढ़ेगा भारत तो कैसे पढ़ेगा भारत, एक बात बताओ तो, किसी को मालूम है एजुकेशन सेक्टर में कितने एनपीएज हैं अभी, एनपीएज आर इंक्रीजिंग इन एजुकेशन सेक्टर, व्हाट आर द रीजंस, टेल मी। अच्छा आपका फिल्म सेशन हेल्प हुआ, 125 130 आ रहे हैं, तुम लोगों ने भी सबके मार्क्स चुरा लिए हैं, तभी लोगों के कम आ रहे हैं मार्क्स। तुम लोगों से फीस ज्यादा लेनी पड़ेगी फिर अब इस प्रोग्राम की, इतना मैंने सोचा नहीं था हेल्प करेगा, इतने ले आओगे तुम लोग भर भर के नंबर, ठीक है। अब देखो एजुकेशन सेक्टर में एनपीएस बढ़ रहे हैं, हाँ, नाउ स्टूडेंट्स आर माइंडफुल एंड माइंडफुलनेस, सी यू हैव स्टार्टेड टॉक लाइक एरिस्टोटल, नॉट गेटिंग जॉब आफ्टर डिग्रीज, वेरी गुड, प्रोलिफरेशन ऑफ सब स्टैंडर्ड बट न्यू, हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात है। और क्या है भैया, हर जगह पढ़ाई की कॉस्ट भी तो बढ़ गई है, तो लोगों को लोन भी, यार खुद सोचो ना कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, दो ही चीजें थोड़ी लिखाएंगे बस, राइजिंग एस्पिरेशन क्यों लिख दोगे यार, ये लास्ट पॉइंट होना चाहिए। राइजिंग एस्पिरेशन तो अच्छी बात है, अब राइजिंग एस्पिरेशन की वजह से एनपीएस बढ़, देखो इसी को कहते हैं, ये गलत बात है, फोर फोर ई एम्प्लॉयबल नॉट एक्सीलेंस, हाँ ये अच्छी बात कही तुमने, हाई कॉस्ट ऑफ इंफ्रा फॉर शो पर्पसेज ओनली, अच्छा ऐसा मत लिखना फॉर शो पर्पसेज ओनली एग्जाम में, लोन वेवर हायर एजुकेशन सेक्टर, हाँ, इज नॉट अचीविंग ब्रेक इवन फॉर ओनर स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेज, दे आर मशरूमिंग, ये सही पॉइंट है, ठीक है, फ्रेमिंग को ठीक कर देना, इक्विटी और एक्सपेंशन, अच्छा सही है। और फिर ये भी कहो ना एकेडमिक कॉस्ट भी बढ़ गई हर चीज की, पैथेटिक लस्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब, कृपया ऐसे पॉइंट मेंस एग्जाम में ना लिख के आए, ठीक है। तो इवन यू आर एस्पायरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब और एग्जामिनर विल बी वेरी रूथलेस फॉर यू, राइट, स्किल एजुकेशन मिसमैच, राइट। तो देखो अब मैंने तुम्हें एक नुमायना भी दिखा दिया हाउ दिस प्रोग्राम विल गो,
ऐसे तुम्हें क्वेश्चन पोज किया जाएगा, तुम कुछ पॉइंट्स लिखोगे, कुछ ऐसे पॉइंट लिखेंगे जो नहीं लिखने चाहिए, वी विल आइडेंटिफाई, वी विल करेक्ट यू, राइट। अभी एक पॉइंट और भी कह सकते थे तुम लोग कि भैया जो पब्लिक सेक्टर बैंक से लोन मिलता है, जनरली 4 लाख तक एजुकेशन लोन वगैरह का प्रोविजन है, तो उसमें कोलेटरल की जरूरत ही नहीं है, तो एवरीबडी इज टेकिंग लोन। एंड अच्छा एक बात बताओ, अगर 4 लाख से ज्यादा का लोन होगा फिर क्या होगा, या जो लिमिट है। In India, students after graduation are not recommendable for jobs as compared to the European country, which might raise question on our education curriculum. Good point. अच्छा बोला है, लिखना सही से, ठीक है। और कोई ये मत लिखा ना, इन इंडिया ग्रेजुएट्स आर गोइंग आफ्टर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन लाइक मैड एंड दे आर एग्जॉस्टिंग 6 अटेम्प्ट आफ्टर टेकिंग लोन फॉर एजुकेशन। विशियस सर्किल इज क्रिएटेड, लो इकोनॉमी सो नो जॉब्स। वो तो इकोनॉमी और उसमें आ गया। तो अब बताओ फिर अगर ज्यादा का लोन होगा फिर कहां जाएंगे लोग, एनबीएफसीज में, ठीक है। और एनबीएफसीज में लोन जो है वो विदाउट कोलेटरल नहीं मिलेगा, राइट। सो इसीलिए भारत जो है वो पढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है बेचारा, और 9% है इस समय पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एनपीएस बिकॉज ऑफ एजुकेशन सेक्टर। राइट टू एजुकेशन टिल 14 years एंड मिनिमम एज फॉर जॉब इक्वल टू 18 years, where are 4 years। ये एग्जामिनर से मत पूछना where are 4 years, ऐसे मत लिख के आना, ठीक है। राइट टू एजुकेशन टिल 14 years and minimum age for job 18 years, where are 4 years, then he will make you prepare for another 1 year at least, until unless you stop writing such point। willfully not pay, people wait for waiver after election। अब willfully not pay में देखो एटलीस्ट बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, बच्चे उस समय इतने अनएथिकल नहीं होते हैं, इंटरेस्ट। अब यही है देखो कि इसीलिए इतने भी पॉइंट मत बताओ कि बस लिख के ही आएंगे और 25 पॉइंट लिखाएंगे। भैया 4-5 पॉइंट लिखना, लॉजिकल पॉइंट लिखना, एंड दिस इज वेयर यू नीड टू स्टॉप। ब्रेक नाम की भी एक चीज होती है साइकिल में, गाड़ी में, तो तुम भी लगाना सीखो ब्रेक। अब मैं ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ पॉइंट बताओ तो इररेलेवेंट पॉइंट बताने शुरू कर दे रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अभी मेरी तरफ से। लेट मी आस्क चेतन सर टू एड्रेस यू ऑल। वो तुम्हें प्रोग्राम का थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह और समझाएंगे, राइट। बट लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, मेंस या ये पूरा एग्जाम एंजाइटी और प्रेशर से नहीं निकलता है। डू योर प्रिपरेशन इन अ वेरी लाइट मूड, ठीक है। टारगेट सेट करो कि हाँ ऑप्शनल मुझे एक महीने में 70-80% कर लेना है। देन फॉर जीएस आई हैव टू go through certain areas which I am weak at। तो कुछ ना कुछ प्लानिंग, एंड देन आंसर राइटिंग is no doubt is the most important thing for this exam। Okay, no amount of content can help you if you are poor in answer writing and expressing yourself। That is how presentation is very important, because when we are writing in 3 hours we do not understand and we are not aware of what mistakes we are going to make। we keep on making mistakes, फिर पेनल्टी लगती है, राइट, और फिर मार्क्स खराब होते हैं। तो that is what I will say, all those who are writing main this year and aspiring for next year must utilize time very judiciously and productively। So this is from my side। I would be here for some more time if anything, any question from my domain I would help you out। So over to Chetan sir now। Thank you, sir. Thank you for your insights. I hope this will help to the aspirants. Hello, everyone. So, Nidul sir has discussed about the dynamics associated with your mains preparation or the mains exam. What I would throw light on is the structure of our program, then how we are going to proceed with this program, and for this, the messages whatever you have got. In that also we have highlighted 3 main questions. So first was like, who needs this program? So to answer this question, who needs this program, you will say this is very easy, whoever is writing mains 2020 or 21. So the inquiries which we are receiving at Chrome IAS, there are majorly 4 or 5 kind of aspirants, I would say, who are inquiring about this program, and how this program is going to help all of them. I'll just throw light on it.
So first kind of person are those who have scored exceedingly well. Like most of you have scored 120, 130 after this magical session of Mridul sir. So there are these people who have scored very well. Then there are those who are standing on the boundary line. They are not sure, sir. Like they come to us and tell, sir 95 आ रहा है, I don't know whether I'll clear or not. और इसी जद्दोजहद में वो लोग काफी एक लंबा टाइम इसी जद्दोजहद में स्पेंड कर दे रहे हैं कि मैं कब और कैसे और फुल विगर के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूं. सो वो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लास्ट अटेम्प्ट में हैं और दे डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड. So for them also we have designed this program in such a way that this will help to all of these kind of aspirants. So telling about this program, this is designed in such a way that this will help especially in a very good way to those students who are first and second timers, because कुछ जो हमारा एक्सपीरियंस है विद आवर टेस्ट सीरीज एंड विद आवर अदर प्रोग्राम्स, फर्स्ट और सेकंड टाइमर्स के जो मेंस लिखने वाले स्टूडेंट हैं वो कुछ एक पैटर्न की मिस्टेक्स होती है जो वो हमेशा करते हैं. देयर इज दिस फिक्स पैटर्न कि जो फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं दे विल जो आई विल जस्ट डिस्कस फर्दर अबाउट these mistakes which first and second timers do. So this is going to help these first and second timers. क्राउड में दूसरा जो इंक्वायरीज आ रही है जो एस्पिरेंट्स हमें कॉल कर रहे हैं वो है वर्किंग प्रोफेशनल्स. वर्किंग प्रोफेशनल्स both in private sector and public sector, as well as those who have entered into the service and they are finding very less time to devote for their preparation of mains exam. So working professionals के लिए भी ये बहुत ज्यादा helpful होने वाला है. Then there are those aspirants who are selected in UPSC. They got selected somewhere in 2016, 2017 and 2018, but they could not maintain a contact with continuous contact with their preparation or the material, or वो ORN वाली जो उनका टच था वो टच चला गया है. सो उनके लिए भी ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है. दूसरा, इस प्रोग्राम के पीछे आइडिया ये भी है, वी डोंट वांट अ ह्यूज क्राउड. 1000 रजिस्ट्रेशन हमें नहीं चाहिए. वी वांट सिंसियर एस्पिरेंट्स. सिंसियर एस्पिरेंट्स इसलिए ताकि जब ब्रेनस्टॉर्मिंग में जब वो पार्टिसिपेट करें तो इट नॉट ओनली हेल्प देमसेल्व्स, इट विल हेल्प अदर्स एज वेल. और जब दूसरे लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये आपको भी मदद करने वाला है. Then one more thing I must mention here, when I say this is going to help first and second timers, इसका मतलब ये नहीं है कि आप multiple time mains लिख चुके हैं तो ये आपको मदद नहीं करेगा. This is certainly going to help even those people who have written multiple mains but haven't got this interview call. वो अभी तक 4, 5, 6 मेंस लिख चुके हैं लेकिन इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे हैं. सो और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम एस्पिरेंट्स के साथ ये है, सबसे बड़ा क्राउड जो लास्ट कैटेगरी में बताता हूँ वो उन लोगों का है हु आर फेसिंग प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक. कोरोना के कारण अपना जहां भी प्रिपरेशन कर रहे थे मेट्रो सिटीज में वो छोड़कर घर उनको जाना पड़ा. बिकॉज ऑफ सम रीजन दे ब्रोक देयर लिंक इन मार्च और अप्रैल, और उसके बाद मेंस की जो 1-1.5 महीने की लास्ट की प्रिपरेशन वो लोग लास्ट फेज में थे, वो लास्ट प्रिपरेशन नहीं कर पाए. कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर प्रीलिम्स का बहुत बड़ा फियर फैक्टर था, तो दे डिवोटेड अ लॉन्ग टाइम, से 4 और 5 मंथ्स फॉर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स. तो वो लोग पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेशन में चले गए. प्रीलिम्स ओरिएंटेशन मतलब जैसे वो न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं तो दे हैव मेड दिस हैबिट ऑफ कलेक्टिंग फैक्ट्स. वो अभी भी फैक्ट्स कलेक्ट करते जा रहे हैं. सो दीज आर few type of variants. आप अगर इसमें से किसी भी कैटेगरी में स्टैंड करते हैं तो आई विल एक्सप्लेन हाउ दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू हेल्प यू. So this was my answer to the question who needs this program. अगर आप फर्स्ट टाइमर या सेकंड टाइमर हैं, आपने मल्टीपल मेंस लिखी है लेकिन इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे हैं, if you are working professional, if you are your studies were hampered because of this pandemic कोरोना आउटब्रेक, और आपका एक लंबा मेंस से लिंक टूट गया है, जो आप जहां भी कोर्सेज कर रहे थे, फाउंडेशन कोर्स, जीएस मेंस प्रोग्राम्स और व्हाटएवर, ऐसा एक बहुत बड़ा क्राउड हमारे पास हर दिन कांटेक्ट करता है. So let me answer next question. Why you need this program? Why you need this program? इसके बहुत सारे dimensions हैं. पहला dimension तो मैं यही कहूंगा कि what we see during preparation phase for mains, most of the students do is they devote much of the time on readings. We do a lot of readings. बहुत ज्यादा पढ़ते हैं. आप लोग शायद इससे agree करेंगे. कुछ लोग compilations पे पूरा डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं. कुछ लोग अपने साल भर में या 2 साल में या 3 साल में बनाए हुए नोट्स पे डिपेंड करते हैं. दे डू मल्टीपल रीडिंग्स
And when you do multiple readings, for example, if I give you, let's say, paper 1 social issues, yeah, so जब सोशल इश्यूज के बारे में आपको एक कंपाइलेशन प्रोवाइड कर दिया, अब इस कंपाइलेशन को आप क्या करेंगे, यू नेचुरली आता है कि आप पूरा मगअप क्रैम करने की कोशिश करेंगे कि मैं पूरा का पूरा रट लूं, एंड दिस गिव्स यू अ स्यूडो सेटिस्फेक्शन. एंड व्हेन यू हैव दिस स्यूडो सेटिस्फेक्शन, द गेम इज नॉट ओवर. इस स्यूडो सेटिस्फेक्शन से नहीं ओवर होगा. या आप हर दिन एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, आपने कुछ किसी टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छी इंसाइट्स बना ली, अपने खुद की अंडरस्टैंडिंग बना ली. Until and unless you reflect this understanding in your answers, this knowledge is of no use. आपने जो भी रीडिंग्स की है, जो मोटा मोटा कंपाइलेशन पढ़ा है, किसी कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट का कोई मटेरियल पढ़ रहे हैं, वो किसी यूज का नहीं है जब तक कि आप उसको रिफ्लेक्ट नहीं करें. इस प्रोग्राम को हमने इस तरह से बनाया है. से फॉर एग्जाम्पल, आपने कल के न्यूज़पेपर में या परसों के न्यूज़पेपर में कोई इशू पढ़ा, नेक्स्ट डे यू आर ज्वाइनिंग दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, और सेम इशू से रिलेटेड कोई टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. जब उस डिस्कशन के दौरान, उस ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान यू पार्टिसिपेट एंड यू use this point and you share this point, this registers in your permanent memory, or this registers in your active knowledge vocabulary. So जब तक कोई भी इशू या कोई भी अंडरस्टैंडिंग आपकी एक्टिव नॉलेज वोकेबुलरी में रजिस्टर नहीं होगा, तो वो जो 2-3 दिन पहले पढ़ा हुआ एडिटोरियल है, वो इतना वॉलेटाइल है कि आप 1 महीने बाद पूरा भूल चुके होंगे. सिर्फ उसको पढ़ते वक्त आपको एक स्यूडो सेटिस्फेक्शन आएगा. बट यू हैव टू राइट से मेंस आफ्टर सम 95-96 डेज की विंडो है इस बार. तो 96 डेज में यू विल डू अ ह्यूज पाइल अप ऑफ मटेरियल, यू विल गो थ्रू एंड यू विल डू दिस रीडिंग, एंड अंटिल अनलेस यू यूज दिस रीडिंग्स, वो आप उसको वहां पर आंसर में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे. दिस इज व्हाट वी सी इन अदर टेस्ट सीरीज प्रोग्राम्स एज वेल. लोग बहुत सारा पढ़ते हैं किसी भी इशू पर, लेकिन उसको यूज नहीं कर पाते आंसर में. दूसरा, इस प्रोग्राम में यू कैन से वी आर यूजिंग दिस फिनोमेना कॉल्ड क्राउड सोर्सिंग ऑफ टॉपिक्स. कि आप कहीं से कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं या करंट अफेयर में कोई ऐसा टॉपिक चल रहा है कि आप उस पर खुद से कंटेंट प्रिपेयर नहीं कर सकते, या यू वांट अ प्लेटफॉर्म टू डू अ थोरो डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक, so you can share these topics with us. We will selectively pick some topics, and then we will discuss about these topics in these sessions. So point number 1 is you should reflect in your answers whatever you are reading, and then point number 2 which I discussed is crowdsourcing of these topics. Like जो भी टॉपिक आपको लगता है कि आप एक डिस्कशन इसके ऊपर हो जाए, तो बहुत अच्छा है, आपको हेल्प करेगा. तीसरी प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी अपने अपने घर पर तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग नियर देयर इंस्टीट्यूट्स या एक जो हब होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का उसके आसपास या मेट्रो एरियाज में रह भी रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग द कंपनी ऑफ सिंसियर एस्पिरेंट्स जो उनको पहले मिला करती थी, या जो एक माहौल जिसे कहते हैं मिला करता था, वो माहौल आपके घर पे जरूरी नहीं है अवेलेबल हो. उसके चलते भी आपकी प्रिपरेशन जो है उतनी विग्रस, उतनी एनर्जी के साथ नहीं हो रही है. तो जब यहाँ पर हर दिन हम 2 घंटे के लिए मिलेंगे या 2 से 2.5 घंटे के लिए हर दिन जब एक स्टार्ट करेंगे, आपके दिन को किक स्टार्ट करेंगे इस डिस्कशन के साथ, तो ऑब्वियसली यू विल गेट दिस सो कॉल्ड मिसिंग माहौल, जो भी कोरोना की वजह से, या आप घर से दूर हैं, या आपकी लिंक टूट गई है, या आपके पास कंपनी नहीं है सिंसियर एक्सपीरियंस की, उसके चलते जो एक डेफिसिट हो रहा है एक माहौल वाला, वो भी यहाँ पे मिलेगा. Then next feature of this program is you will be in continuous mentoring and monitoring of the experts. Usually क्या होता है, जो रिचुअलिस्टिक टेस्ट सीरीज हम ज्वाइन करते हैं मेंस के प्रोग्राम में, इवन वी आर प्रोवाइडिंग टेस्ट सीरीज एट प्रोम आईएएस, तो लोग उसे रिचुअल की तरह लेते हैं कि हर व्यक्ति को जिसकी प्रीलिम्स क्लियर हो रही है, मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, उन्होंने एक शेड्यूल दे दिया है, उस शेड्यूल पे जाकर टेस्ट लिखना है, और टेस्ट लिखने के बाद उसके पास जो पाइल अप मटेरियल है पढ़ने का, रीडिंग का ही, it hardly you get time to see your mistakes and then make changes. और आप अपनी टेस्ट सीरीज की मिस्टेक्स को समझ भी लेते हैं कि हाँ मैं इस तरह की गलती कर रहा हूँ, बट यू हैव वेरी लिमिटेड स्कोप ऑफ करेक्टिंग दोस मिस्टेक्स, क्योंकि उस पोर्शन का आपका टेस्ट ऑलरेडी आप लिख चुके हैं. बट व्हेन यू ज्वाइन सच प्लेटफॉर्म ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, आप जितना भी अपने क्रिएटिविटी अपने आंसर में दिखाना चाहते हैं, यू मे नॉट नो कि वो सही तरीका है या नहीं है, या उसको इम्प्रूव किस तरह से करना है. आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान जब फॉर एग्जाम्पल आई आस्क अ पर्सन ए, बी और सी कि आप अपना आंसर पढ़िए, फिर उसमें आप बताएंगे कि सर मैंने इस तरह की क्रिएटिविटी का यूज किया या इस तरह का करेक्शन किया है जो मैं पहले नहीं करता था, देन यू कैन जस्ट आस्क टू योर लेक्चरर और द फैकल्टी कि ये सही है या नहीं, ये सही डायरेक्शन है या नहीं. सो बेसिकली इसके पीछे जो थॉट है हमारा, वो ये था कि टेस्ट आपकी जो लर्निंग हो रही है, दैट शुड बी बेस्ड ऑन मल्टी मोडालिटी.
तो ये साइकोलॉजी के अंदर भी एक वैलिडेटेड पॉइंट है कि व्हेन यू लर्न थ्रू मल्टी मोडालिटी, दैट इज थ्रू योर, you use your sense of vision, then you auditory skills, then you read and write, then kinesthetics. सिंपल भाषा में आप लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं. तो इस सेशन के दौरान आपके तीनों प्रोसेस साथ साथ चलते रहेंगे. दिस इज मल्टी मॉडल ऑफ लर्निंग. तो वो ज्यादा अच्छे से आप रजिस्टर करेंगे उस इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, सर ने अभी अभी डिस्कस किया दिस इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. अब इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के इशू में आप क्लास में बैठ के सुन भी रहे थे कि इनसाइट्स एक्सपर्ट क्या दे रहे हैं, आप राइट भी कर रहे थे, लिख भी रहे थे. उसके साथ साथ जब क्लास सेशंस होंगे तो यू विल सी कि दूसरे लोग इसको किस तरह से लिख रहे हैं. टेस्ट सीरीज में क्या होता है, टेस्ट सीरीज के अंदर आपको अपने लिखे हुए के ऊपर फीडबैक मिलता है. यू मे नॉट नो कि आप जब एग्जाम में वो आंसर्स लिखेंगे तो इसी सेम पैटर्न में लिखने वाले हैं, बिकॉज ओवर दिस पीरियड ऑफ 3 months और लेस देन 3 months, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. आप दूसरों की गलती भी देखेंगे और दूसरों की गलती से भी सीखेंगे. लाइक ओके, सर ने किसी पर्टिकुलर बंदे को बताया था, पर्टिकुलर एस्पिरेंट को बताया था, he is doing such and such mistakes which I do not have to do in the mains exam. Then this is another major issue which we are going to tackle in this session through these brainstorming sessions. Then एक major problem होती है कई portions में, आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है. लाइक कुछ लोग आते हैं, सर वर्ल्ड हिस्ट्री में हाउ मच टाइम शुड आई डिवोट. वर्ल्ड हिस्ट्री में एक ही क्वेश्चन आने वाला है, और अगर आपको कहा जाए कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए पूरी नॉर्मल लोवे पढ़ लो तो आप 1 महीना वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने में लगा देंगे, या हो सकता है आप अपनी तरफ से कि सर वर्ल्ड हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, मैं 20 दिन से वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ. आपको इस तरह की गलतियां नहीं करनी है. Although this exam is very unpredictable, you have to be prepared to write any answer. You, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड हिस्ट्री का हो सकता है इस साल 3 क्वेश्चन पूछ लें. यू नेवर नो, यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल. तो व्हाट वी विल डू इज, जैसा सर ने बताया, यू नीदर हैव टू बी ब्लैंक अबाउट एनी टॉपिक नॉर यू हैव टू डू पीएचडी अबाउट एनी टॉपिक. तो वर्ल्ड हिस्ट्री की जो मेजर थीम्स है कुछ टॉपिक्स के, वो हम क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और उसको इतना एग्जॉस्टिवली डिस्कस करेंगे कि दैट यू आर एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन विच एनी अदर एस्पिरेंट कैन आंसर. फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कुछ ऐसा बाउंसर मार दिया कि कोई भी सही आंसर नहीं कर सकता, जिसने हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा है या पढ़ाया है वो भी नहीं कर सकता, तो यू आर नॉट एट लॉस. लेकिन उसमें भी आप अटेम्प्ट कर जरूर आएंगे. तो उस तरह से इस तरह के पोर्शंस जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम इज नॉट वेरी प्रूडेंट टू डू, उसको हम उस लोड को आपके लिए अनबर्डन करने की कोशिश करेंगे. तो वी आर नॉट गोइंग टू लोड यू विथ एक्स्ट्रा कंटेंट की आपको एक हैंडबुक देंगे, इंडेक्सेस की एक हैंडबुक देंगे, आपको बहुत सारे हॉट टॉपिक्स की एक हैंडबुक देंगे कि फॉर श्योर 50 टॉपिक्स, फॉर श्योर 100 टॉपिक्स. इस तरह का कुछ नहीं होने वाला है. व्हाट वी विल डू फॉर यू इज, वी आर नॉट गोइंग टू फीड यू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, रेदर वी वांट यू टू ट्रेवल विथ अस थ्रू दिस प्रोसेस. अगर आप पूरे प्रोसेस के थ्रू गुजरेंगे, हमारे साथ गुजरेंगे, तो अल्टीमेटली यू विल हैव दैट फिनिश्ड प्रोडक्ट जो आपने खुद पकाया है. आपको बना बनाया हलवा नहीं खिलाना है, हजम नहीं होगा. वो खुद बनाओगे, मीठा भी लगेगा, हजम भी होगा. देन अच्छा, ये एक्सरसाइज करने के पीछे एक व्यू ये भी है, एक हमारा थॉट ये भी है, वी वांट टू चैनलाइज योर एनर्जी इन वेरी डाइवर्स एरियाज, and not only channelize your energy, but we also want you to conserve your energy, because this exam, as sir has told, this exam is not very difficult. Real challenges of time. आपके पास टाइम बहुत कम है. अगर यही मेंस एग्जाम आपको 3 टुकड़ों में लिखनी हो, या हर पेपर के लिए एक महीने का टाइम मिल रहा है, आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो. जिसके 90 आ रहे हैं वो शायद 130, 140, 180 लेके आए. रियल चैलेंज जो है वो लिमिटेड टाइम का है. तो इस लिमिटेड टाइम के लिए वी विल अनबर्डन यू, आपका कुछ लोड लेंगे. उसके लिए आपको बना बनाया रिसर्च किया हुआ मटेरियल मिलेगा या क्वेश्चंस मिलेंगे जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और इसके चलते आप अपनी एनर्जी कंजर्व भी कर सकते हैं और चैनलाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों के लिए ऑप्शनल एक बहुत बड़ा चैलेंज है. किसी कारण से ऑप्शनल का पेपर 2 का कुछ पोर्शन प्रिपेयर नहीं हुआ, किसी कारण से पेपर 1 में ही इज फाइंडिंग डिफिकल्टी, तो आप चाहते हैं कि आपका ऑप्शनल और जीएस का बैलेंस बना रहे. तो इस तरह से इस प्रोग्राम को डिजाइन किया हुआ है कि दिस इज गोइंग टू कीप योर प्रिपरेशन वेरी बैलेंस्ड. ऐसा नहीं होगा कि पेपर 1 सर बहुत अच्छा है लेकिन मुझे ऐसे लिखना नहीं आता, या पेपर 4 एथिक्स में तो सर मैं इतना एथिकल हूं कि आप महात्मा गांधी की जगह मुझे कोट कर सकते हैं, लेकिन 1, 2, 3 मेरे वीक है. इस तरह का आपको प्रिपरेशन अनबैलेंस नहीं होने देंगे. आपको सभी पेपर्स में नंबर लेके आना है. प्लस
आपके लिए इतना स्कोप भी छोड़ेंगे कि आप अपना ऑप्शनल बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। नेक्स्ट थिंग इज, दिस इज नॉट वेरी स्पॉन्टेनियसली, हम कुछ भी टॉपिक्स आपको नहीं देंगे, आपके साथ एक शेड्यूल भी शेयर करेंगे, बिकॉज वो बोलते हैं ना, इफ यू आर फेलिंग टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल, ऐसा ऐसा यहाँ नहीं होगा। हम एक डिटेल्ड प्लान भी देंगे, इस प्रोग्राम को बहुत स्ट्रक्चर करके आपके लिए डिजाइन किया हुआ है। You will find sufficient time for your optional, your essay, your GS papers. We will be having classes only 4 days a week, 2 to 2.5 hours. तो जब सिर्फ 4 दिन के लिए 2 to 2.5 hours आप एक इस डिस्कशन वाली एक्टिविटी में लगाएंगे तो आपके पास सफिशिएंट टाइम भी होगा। यू विल हैव वीकेंड्स फॉर योर टेस्ट पेपर्स, टेस्ट सीरीज जो आपने ज्वाइन की हुई है, एंड वी ऑल्सो वांट यू टू टेस्ट वॉट एवर यू गेन फ्रॉम दीज सेशंस इन योर टेस्ट, कि वहां पर इनका कुछ रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिन लोगों ने क्रोम आईएस पे हमारे साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, यू विल सर्टेनली कम टू नो, even we, while doing your hand holding in these test series papers, we will show you how you are improving with these brainstorming sessions. So ये दोनों courses, test series भी और brainstorming भी, these are going very hand in hand and they are complementing and supplementing each other, they are not antithetical to these. आपने अगर और कहीं भी test series join की है, you will certainly see the changes which will be visible in your answers, and with time you will improve a lot on your mains answer writing. Then taking question number 3, how this program intends to benefit you. So how this program intends to benefit you, I'll tell you. See, first thing is you need to do transition from this prelims mindset to your mains mindset. Many of you must have done this till now, but लेकिन अभी भी कुछ लोगों के कॉल्स आते हैं कि सर अभी उतनी विगर के साथ प्रिपरेशन शुरू नहीं हुई है जो मैंने आपको बताया था। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है क्रोम आईएएस पे किसी भी कोर्स को डिजाइन करने का, जब आप प्रीलिम्स के किसी कोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर ज्वाइनिंग सम टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स, आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, तो वहां पर जितना बड़ा क्राउड हो, जितने बड़े क्राउड के बीच में आप बैठकर टेस्ट लिखेंगे, उतना अच्छा आप एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस लेंगे और आपकी वो आदत बन जाएगी टाइम के साथ, एंड यू विल परफॉर्म वेरी वेल इन प्रीलिम्स. So this is like you can say this philosophy of bigger is better. The bigger it is, the better it is. So this is true for prelims courses. But when it comes to mains ke courses, this bigger is better is not true for mains ke courses. Here we believe in philosophy of small is beautiful. आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, small is beautiful. कुछ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वाले लोग होंगे तो small is beautiful मतलब we need to make a small group of very very sincere aspirants. Say for example अपने क्लास में 50 aspirants होते हैं, 100 aspirants होते हैं, तो we want success rate to be very high. हमें 1000 स्टूडेंट्स नहीं चाहिए जिनमें से 50 लोगों का या 100 लोगों का सिलेक्शन हो जाए. अगर हमारे साथ 100 स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, we want 100 या more than 90 aspirants to qualify the exam. उनका इंटरव्यू कॉल आना चाहिए, या उनके साथ जो भी प्रॉब्लम होगी वो मेंटरिंग के दौरान, इंडिविजुअल मेंटरिंग मॉनिटरिंग जब इनकी होगी एक्सपर्ट्स द्वारा, तो वी विल हेल्प यू आउट. सो दिस इज व्हाट दिस basic philosophy of small is beautiful behind this course. Then one more, our personal ideology is, even sir highlighted upon this, we don't want to feed some content to you, and we don't want we will never ask you to cram anything. हम कभी नहीं कहेंगे कि ये कंपाइलेशन लो और इसको रट लो, या सोशल इश्यूज से रिलेटेड ये 100 फैक्ट्स हैं, आपको यही आंसर में रट कर यूज करना है, नहीं. या वी विल नेवर आस्क यू टू insert diagram in each and every question. There are few programs which are running on, so I personally do not believe that there is a particular set or that the ढांचा of answer कि आप हर आंसर को उसी ढांचे में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है. Even our previous batch students who got very nice even single digit ranks, they wrote answers which are very very different from very general perspective. is like कुछ लोग बोलते हैं आपको मैप ड्रॉ करना है, कुछ लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट, डेटा, डायग्राम, इनके बिना आंसर अधूरा है. तो ऐसा उनके साथ नहीं था, एंड दे हैव गॉट वेरी गुड रैंक्स. व्हाट बेसिक आइडिया इज दैट यू नीड टू बिल्ड अपॉन योर ओन जीनियस. आपका खुद का जो इनहेरेंट टैलेंट है उसके ऊपर इनोवेशन करके, अपनी खुद की क्रिएटिविटी के ऊपर बिल्ड करके, यू नीड टू डेवलप दिस जीनियस एंड देन डेवलप दिस स्किल ऑफ आंसर राइटिंग. I can tell you what kind of points you should write. What should be tone of your answer. I can, जैसे अभी किसी ने कहा था where are these 4 years. This tone of answer is not right. But इसको change करने के बाद आप कैसी tone accept करते हैं, this should be very much dependent upon person to person.
मैं आपको ये नहीं कह सकता कि हमेशा आपको पॉजिटिव बातें ही लिखनी है। अगर आप किसी क्वेश्चन में क्रिटिक लिख रहे हैं तो उसको भी पॉजिटिव वे में लिखा जा सकता है। सो रेदर देन फिटिंग योरसेल्फ इनटू दीस प्री कास्टेड मोल्ड्स, बने बनाए ढांचे में आपको डालने की बजाय व्हाट वी वांट योर जीनियस, योर टैलेंट टू बी उसमें निखार आए। मतलब वो कंपाइलेशन रट के अपने आंसर और टेस्ट सीरीज के पैसे खत्म नहीं करना है। हम क्लास में भी आप धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे, यू विल सी दिस कॉन्फिडेंस की कई बार ऐसा होता है, कोई एस्पिरेंट ऐसा होता है जिसके पास सच में आंसर लिखने की बहुत अच्छी कला है, लेकिन ही इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द फैकल्टी हु इज टीचिंग। So we are liberal, very liberal in that way. We are never going to challenge your way of writing. What we are going to tell you is like, okay, these are the problems which we see, and then we will discuss. Then obviously you will get this satisfaction rather than this pseudo satisfaction कि हाँ मेरी बात को सुना गया, और उसके बाद आप रजिस्टर करेंगे, उस चेंज के लिए आप ज्यादा ओपन होंगे। Okay, sir, I have wasted my 2 years, but nobody gave me insights like what you are giving. Okay, thank you. For modern history opinion based question along with spectrum book. Okay, I'll answer all your questions. Then one more point, how you will benefit. So next point, the same which I discussed, you will need sufficient time for balancing GS and optional. Until unless you have sufficient time, होता क्या है कि आप 27 टेस्ट की टेस्ट सीरीज लगा लेंगे, या आप कोई ऐसा प्रोग्राम लॉन्च कर लेंगे, गोइंग GS 1 2 3 4 हर टॉपिक क्लास में करवाएंगे हम, लेकिन उससे क्या होगा, आप अपने ऑप्शनल और जीएस के बीच में बैलेंस नहीं बना पाएंगे। यू कैन टेक इट इन राइटिंग फ्रॉम मी कि आपको अगर ये अनबैलेंस्ड वे में प्रिपरेशन की तो यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर योर मेंस। यू हैव टू बी वेरी बैलेंस्ड इन योर अप्रोच। और इवन सर हैज टोल्ड अबाउट दिस इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल, जब वो आंसर अपना स्कोर कार्ड डिस्कस कर रहे थे, व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ ऑप्शनल। तो वी विल नेवर से कि आप जीएस में हमारे यहाँ पूरा टाइम स्पेंड करो, 7 दिन आ जाओ, 7 दिन में 4-4 घंटे हर दिन हम जीएस डिस्कस करेंगे क्योंकि 4 पेपर होने वाले हैं, ऑप्शनल में 2 पेपर। कभी भी नहीं। आपको 7 पेपर में एक्सीडिंगली वेल परफॉर्म करना है। एक प्रॉब्लम और एस्पिरेंट्स के साथ होती है, अगर आपके साथ नहीं है तो इट इज वेरी गुड, लेकिन जनरली नॉर्मल ह्यूमन नेचर है वो, कि आपकी इस स्ट्रगल में भी ना, ये स्ट्रगल ट्रूस वाला पीरियड आने वाला है। गांधी जी के साथ भी आया था भाई, उन्होंने भी नेशनल मूवमेंट जब चलाया था तो स्ट्रगल ट्रूस के साथ चलाया। सिंस यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम, दिस टाइम विंडो ऑफ लेस देन 3 months, आपके पास चूंकि ये विंडो बहुत छोटी है, वी वांट योर ट्रूस पीरियड टू बी वेरी स्मॉल। आपका स्ट्रगल जो है वो सस्टेन्ड चले, अगर कुछ डाउनफॉल आता है तो वी विल पिक यू अगेन। आपको एक आपकी ऐसी इस तरह से हैंड होल्डिंग करेंगे, वी विल अगेन ब्रिंग यू इनटू दिस स्ट्रगल मोड, इनटू दिस स्ट्राइविंग मोड, एंड यू कीप ऑन डूइंग योर प्रिपरेशन। बाद में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मैं यही सोचते रह गया कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं, इसलिए मैं 45 डेज के बाद प्रोग्राम ज्वाइन किया। देयर आर मेनी पीपल जो अभी भी यही सोच रहे हैं कि मैं कोई प्रोग्राम ज्वाइन करूं या नहीं करूं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं या नहीं करूं, मेरा ऑप्शनल का पेपर 2 जो है वो वीक है, लेकिन उसके ऊपर मैं प्रीलिम्स के बाद काम करूंगा, अगर अच्छे से नहीं आया तो मैं कुछ इस तरह के नोट्स बना लूंगा कि अगले साल बस जाके छाप देने हैं, तो उसके बाद मेरी रैंक 1 की जो मटेरियल बाजार में बिकता है वो सब होगा। वे सब मटेरियल आपको नहीं बनाना है सर। आप एस्पिरेंट हैं, आप कोई एकेडमिशियन नहीं है कि आपको बुक लिखनी है, उस डायरेक्शन में कभी मत सोचो, आपको बुक नहीं लिखनी है। आप इस तरह से प्रिपेयर करो कि आपकी रैंक आ जाए। यहाँ जो पर्पज है उसको डिफीट नहीं करना है। तो ये स्ट्रगल ट्रूस वाला पीरियड जो है उसके लिए पूरी टीम, आई अश्योर यू, मृदुल सर इज देयर, राविका मैम इज देयर, शेखर सर इज देयर, मुकेश सर इज देयर, एंड आई माई सेल्फ, वी विल ट्राई टू बी अवेलेबल टू यू। अगर सच में किसी डिफिकल्टी में है, वो किसी भी तरह की डिफिकल्टी हो सकती है, तो ये जो स्ट्रगल ट्रूस वाले पीरियड के ट्रैप में अगर आप हैं तो आपको अर्जुन बनाएंगे, आप अभिमन्यु नहीं बनेंगे। सिर्फ यही हमारा कहना है, अभिमन्यु मत बनना सर, सबके सब अर्जुन बनो। और जो फर्स्ट एंड सेकंड टाइमर्स को मैं हाईलाइट कर रहा था कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर फर्स्ट एंड सेकंड टाइमर्स, क्योंकि वो कुछ फिक्स्ड काइंड ऑफ मिस्टेक्स करते हैं। what we have seen over years is, even during our preparation when we were first timers and second timers, we find it very difficult to separate the chaff and grain. अगर आप उस शेफ में से ग्रेन को नहीं निकाल पाएंगे अच्छे तरीके से, what you will end up is, you will end up reading books and materials from cover to cover. आप बहुत सेलेक्टिव रीडिंग नहीं कर पाएंगे, और जब सेलेक्टिव रीडिंग नहीं कर पाएंगे तो राइटिंग के लिए आपके पास टाइम होगा ही नहीं, और जब रीडिंग पूरी नहीं होगी, आप राइटिंग करेंगे ही नहीं, तो पहली बार आप जाके एग्जाम में लिखेंगे, और जब पहली बार जाके आप एग्जाम में लिखेंगे तब वहां रियलाइज करेंगे कि जो पढ़ा था
वो पहले कभी नहीं लिखा तो आज भी नहीं लिखा। आपको चारों चीजें एक साथ करनी है, बहुत स्मार्टली अपनी प्रिपरेशन करनी है, जो काम का है सिर्फ उतना ही पढ़ना है। दिस सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द शेफ इज सेम थिंग विद वर्ल्ड हिस्ट्री, कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की कुछ थीम्स पता होनी चाहिए, उसके बाद आप आंसर कर सकते हो। यू डोंट हैव टू रीड नॉर्मल लोवे, या आपको खुल्लर बैठ ज्योग्राफी के लिए खुल्लर पढ़ने नहीं बैठना है अभी। आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर्स में क्या टॉपिक्स चल रहे हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स क्या क्या हैं, और कुछ बेसिक रीडिंग्स क्या क्या है। उन बेसिक इश्यूज के ऊपर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। I can remember recall about one more kind of experience. कुछ लोग ऐसे हैं जो continuously prelims clear कर रहे हैं। This is their sixth prelims they are clearing, but पिछले 5 मेंस उन्होंने क्लियर नहीं किए। इस वैरायटी के भी लोग हैं। And we have even at Chrome IAS we have counseled such kind of aspirants in previous years and they are now officers. तो अगर आप इस वैरायटी में आते हैं कि आपने पहले 5 प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, ये छठा प्रीलिम्स है लेकिन मेंस कभी क्लियर नहीं हो रहा है, तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ज्वाइन दिस बैच। आप ये बैच ज्वाइन करके देखिए, आपको खुद पता पड़ेगा कि आपके पिछले 5 मेंस क्लियर क्यों नहीं हुए। क्योंकि कुछ लोग इतने रिजिड होते हैं अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करने में कि दे आर जस्ट बेंट अपॉन रिपीटिंग द सेम सेट ऑफ मिस्टेक्स व्हिच दे डिड इन पास्ट 5 इयर्स। सो वो आपको नहीं करना है। अगर आप मल्टीपल मेंस लिख चुके हैं तो आपके एक्सपीरियंस पर आपको बिल्ड जरूर करना है, लेकिन यू डोंट हैव टू जस्ट रिपीट दैट एक्सपीरियंस फॉर वन मोर टाइम। वो एक्सपीरियंस एक बार फिर से नहीं लेना है। सो दीज आर few insights which I wanted to give to you guys about okay, so which I wanted to give you about this course structure. सर ने टीम से इंट्रोड्यूस किया ही है, और दिस कोर्स इज गोइंग टू कमेंस फ्रॉम 26th एज सर इज टोल्ड। 26 से स्टार्ट करेंगे, तो आज टुडे इज 18, 18 से 26 तक का आपको जो टाइम मिल रहा है, यू कैन रजिस्टर मीनवाइल। और जो भी आपको बेसिक रीडिंग करनी है, आपने जितने भी नोट्स अपनी प्रिपरेशन के दौरान 1 साल में, 2 साल या जितने भी साल में बनाए हैं, वी जस्ट वांट यू टू फ्लिप थ्रू दोस नोट्स। फिर उसके बाद when once you register you will get a detailed schedule. So once you get this detailed schedule, you can just align your schedule with our schedule. If even if these two schedules, your schedule and our schedule, are not in tune at all, then also you can attend these sessions. For example, randomly आपके पास कोई टॉपिक आ रहा है, सर ने अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का डिस्कस किया, तो ऐसा नहीं था कि यू वर ब्लैंक। आप ब्लैंक नहीं थे, सबके दिमाग में कोई ना कोई, ये फार्म बिल जो अभी आए हैं, फार्म एक्ट हुए, पीएमसी को एबॉलिश किया है, उसके चलते फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो ये सब आपके दिमाग में आ रहा होगा। ये हो सकता है कि चूंकि आप प्रीलिम्स मोड में थे तो आपके दिमाग में फैक्ट्स आ रहे हैं, एंड वंस यू एंटर इनटू दिस मेंस मोड ऑफ डिस्कशन एंड आंसर राइटिंग, तो आपके दिमाग में there will not only be this outburst of thoughts, rather you will have this structured outburst of thoughts, what I tell to my students. जब एक आपके दिमाग में स्ट्रक्चर्ड आउटबर्स्ट ऑफ थॉट्स होगा, तो आपके आंसर बहुत सुंदर होने वाला है। एंड विथ टाइम यू विल विटनेस कि जब एक स्ट्रक्चर्ड आंसर दिमाग में आता है तो क्या अंतर होता है, और जब सिर्फ फैक्ट्स याद आते हैं तो क्या होता है। लेट मी टेल यू क्या होता है, हाउ मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब भी आप मेंस लिखते हैं, तो मेंस लिखते वक्त आपने क्वेश्चन पढ़ा, इवन सर इज टोल्ड, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वहां सोचें। अगर आप वहां सोचने बैठे कि मैं पहले 3 मिनट सोचूंगा कि मैं इसका आंसर कैसे लिखने वाला हूं, टेक इट इन राइटिंग फ्रॉम मी, यू विल नेवर बी एबल टू कंप्लीट एनी पेपर। अगर आप सोचने बैठे तो वहां ऑटोमेटिकली आपकी एंट्रोपी थोड़ी सी बढ़ी हुई होती है, इतनी हाई होती है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा एंड यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग, आप धर 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 लिखना शुरू करते हैं। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज जो आउटबर्स्ट ऑफ थॉट्स, ऑटोमेटिकली यू विल हैव एन नंबर ऑफ थॉट्स। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आंसर्स आप लिख कर देखिए, जब वो बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, अगर वो थॉट्स स्ट्रक्चर में आने लग गए तो आपके आंसर बहुत सुंदर होंगे। अगर वो थॉट्स रिलेवेंट आने लग गए तो आपका आंसर बहुत सुंदर होगा। तो देयर इज दिस डिफरेंस बिटवीन रिलेवेंट थॉट्स एंड रिलेटेड थॉट्स। बहुत सी बार फार्म बिल को, फॉर एग्जाम्पल, यही फार्म बिल एथिक्स के क्वेश्चन में पूछ लिया, इज इट राइट, कितने लोगों का लाइवलीहुड चला गया, एपीएमसी से रिलेटेड है, तो वी विल सर्टेनली कवर दिस इशू इन एथिक्स क्लासेस आल्सो। अब आपसे एथिक्स का पर्सपेक्टिव पूछा है, लेकिन आपने जो रट्टा मारा है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला पर्सपेक्टिव है, तो आप फार्मर्स प्रोटेस्ट में कभी भी एथिकल डायमेंशन नहीं लिख पाएंगे। बट वंस यू हैव ट्रेवल्ड दिस प्रोसेस विथ अस, आप उसमें जब आंसर लिखने लगेंगे, ऑटोमेटिकली एथिक्स पर्सपेक्टिव के जितने पॉइंट्स हो सकते हैं आपके आंसर में वही रिफ्लेक्ट होंगे।
आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में वहां नहीं लिख कर आओगे कि आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हो, फार्मर इनकम बढ़ा सकते हो वगैरह वगैरह, नहीं। फार्मर प्रोटेस्ट पूछा है या आपसे लाइवलीहुड को लेके कुछ चैलेंज क्रिएट कर रहा है या कुछ एथिकल डिलेमा इवन इन पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स के दिमाग में है, वो डिस्कस करना है, तो आप आंसर में रिलेटेड चीजें डिस्कस करेंगे, रिलेवेंट चीजें डिस्कस करेंगे रेदर देन रिलेटेड। इसके अलावा एक और खूबसूरत तरीके से ये प्रोग्राम आपको कैसे बेनिफिट करेगा, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है टेस्ट राइटिंग की, उसमें क्या होता है, आफ्टर आफ्टर अ टाइम गैप यू राइट अ टेस्ट। आप कंटिन्यूअसली हर दिन टेस्ट पेपर नहीं लिखते, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स की प्रिपरेशन इस तरह की नहीं है कि प्रीलिम्स के पहले पूरी मेंस की प्रिपरेशन करके रख दी, अब प्रीलिम्स के अगले दिन से मैं हर दिन एक एक टेस्ट लिखूंगा। ये प्रीलिम्स के टेस्ट की तरह नहीं हो सकता। आपको कुछ पढ़ना होगा, रिवाइज करना होगा, रिकलेक्ट करना होगा, देन यू विल अपीयर फॉर द टेस्ट। तो जो आपको चेंजेस करना है अपने टेस्ट कॉपी के इवेल्युएशन के बाद, जो भी आपको इनपुट्स दिए गए हैं, उसके उसमें भी एक 5 से 7 दिन का डिफरेंस होता है। अगर आप 7 दिन बाद उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं और वहां पर इंप्लीमेंट करके देख रहे हैं, तो पहली बात तो आप रिकॉल करके वो माइंडफुल चेंजेस अपने आंसर में नहीं कर पाते। अगर कर भी लिया तो उनका फीडबैक आपको और 7 दिन बाद मिलने वाला है। ये जनरली आंसर, आपकी जो आंसर इवेल्युएटेड आंसर स्क्रिप्ट्स होती है, उसमें ऐसा होता है कि यू गिव अ टेस्ट टुडे और उसके कुछ दिनों बाद हाथों हाथ आपको फीडबैक नहीं मिल सकता। इस प्रोग्राम में, इस प्लेटफॉर्म में यू विल गेट इंस्टेंट फीडबैक। द मोमेंट यू से वेयर आर 4 years, you will be poked, you will be pointed, this is not acceptable, then you will change your tone। आप जब हर दिन 2 घंटे के लिए एक पर्टिकुलर टोन में आंसर लिखेंगे, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ आंसर लिखेंगे, या एग्जाम की डिमांड के ओरिएंटेशन से आंसर लिखेंगे, यू विल एंटर इनटू हैबिट ऑफ राइटिंग यूपीएससी रिलेवेंट आंसर्स। So once you make this habit of writing UPSC relevant answers, you will automatically understand and you will realize these changes which you are going to make with this program. So there is one question which says, I am weak in GS but still not understanding whether to join or not. Okay, so if you are weak in GS, first thing what I will tell you is, it is good that you have recognized your weakness. This is one good step, that you are admitting it, you are weak in GS। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम छोड़े और गली सकड़ी, हम तो लिख देंगे, वैसा यहाँ एटीट्यूड बिल्कुल नहीं चलेगा। आप अपनी वीकनेस को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, इट मीन्स देयर इज अ सर्टेन डिग्री ऑफ ओपननेस इन योर एटीट्यूड, और आप इस ओपननेस के साथ जब आगे बढ़ोगे, तो सर्टेनली दिस इज going to be very easy for us to mend your ways or to mold your whatever route। आप उस प्रोसेस में चेंज को जल्दी एक्सेप्ट कर पाएंगे। देन अदर क्वेश्चन इज, आई एम वेरी प्रोन टू स्ट्रगल टेंडेंसी। ओके, फॉर वेदांग इज सेइंग दिस। तो आपके ट्रूस पीरियड के लिए हम आपके साथ हैं, और आई कैन ओनली प्रोमिस इन एट दिस मोमेंट, आई कैन ओनली प्रोमिस कि आपका जो भी ट्रूस होगा, उस ट्रूस से आपको स्ट्रगल तक ट्रांजिशन करने में सबसे कम टाइम लगेगा। देन there is one person who is saying, will this program benefit me if I am giving 2021 attempt and given mains before? Okay, so if you are not giving this attempt, this is going to help you only if you are very sincere about writing 2021। अगर आप 2021 को बहुत सिंसियरली लिखना चाहते हैं, आपकी उस तरह से प्रिपरेशन से, तो वी विल एंश्योर दैट यू विल मेक 2021 एज योर लास्ट अटेम्प्ट। उसके बाद आपको अटेम्प्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Then there is one question which says, sir, application of knowledge in multiple areas, will this happen? Of course this will happen। Then another person who is saying, my optional is mechanical and requires a lot of time। So see, I cannot tell you how much time you are going to devote to mechanical, आपने किस तरह से अपनी strategy बनाई हुई है, but what we can promise is, in a very optimum time period, we will try to maximize your understanding of GS papers। Then there is one more question which says, I am not able to link prelims material in mains answer writing, how do I improve on that? One request, जो भी questions post कर रहे हैं वो panelist और attendees दोनों के लिए आप post कीजिए, so that I can see this on my whiteboard। So for those who are unable to link this prelims का knowledge with mains का knowledge, so certainly we will tell you how to use your prelims का knowledge। Prelims का knowledge is not useless, but
if you do not use it in mains का orientation, this is going to be a very negative aspect. आपको हो सकता है इसके लिए बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है. फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन पूछा और आपकी आदत है, उन्होंने एलेबोरेट करने के लिए बोला है, लेकिन आपकी आदत किसी ना किसी तरह से डाल दी गई है या डल गई है कि आप हर चीज को डायग्राम की फॉर्म में बोल रहे हैं. आपने एक भी सेंटेंस नहीं लिखा, आप इंट्रोड्यूस भी नहीं कर रहे हैं किसी क्वेश्चन के बारे में अपना कंटेंट, ना कोई कंक्लूड कर रहे हैं, आप सिर्फ हर आंसर के लिए एक इमेज पिक्चर वहां पर पोस्ट करके आ रहे हैं. इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं उसको बोल रहे हैं कि भाई तू ये इमेज देख ले, ये मैंने पाई चार्ट बना दिया है, ये डायग्राम बना दिया, अब खुद इलेबोरेट कर ले. वो गुस्सा हो जाएगा. आप इस तरह से नहीं कर सकते. आपके पास अगर बहुत सारा फैक्चुअल डेटा है, फैक्चुअल कंटेंट है जो आप मेंस के आंसर में यूज करना चाहते हैं, तो वी विल सर्टेनली टेल यू कि हाउ यू कैन इंट्रो गिव एन इंट्रोडक्शन टू एन आंसर. जब आपके पास किसी रिपोर्ट की कोई बात है या कोई स्टेटमेंट है या कोई कोट है, या आप कैसे कंक्लूजन हर आंसर में लिख सकते हैं. अगर किसी आंसर में आपको लग रहा है कि मैं कुछ कंक्लूजन बना ही नहीं पा रहा हूँ, तो वी विल मेक गिव यू फ्यू कंक्लूजन्स, या जब डिस्कस करेंगे तो कुछ इस तरह के जेनेरिक कंक्लूजन्स आपके पास होंगे कि वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में फिट होंगे हमेशा. तो वो जेनेरिक कंक्लूजन्स आपके पास होंगे सो दैट यू डोंट लीव एनी प्रोजेक्टाइल जस्ट इन हवा में. अगर आपने हवा में दिया है तो फिर उसको लैंडिंग भी करवाएंगे. क्वेश्चन में अगर इंट्रो किया है और बहुत हाई पीक पर लेके गए तो उसको कंक्लूड भी कीजिए, लैंडिंग भी करवाइए. देन अनदर क्वेश्चन सेज, sir, optional trends are changing every year. It is difficult to stick to one strategy as there are always doubt in my mind about my strategy is good. See, this is a very valid point. What I want to tell you one more thing is the another way of looking at it is, हर साल का जो भी टॉपर आएगा, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 के वीडियोस आपके पास बहुत अवेलेबल होंगे यूट्यूब पर. किसी भी साल के 2 टॉपर्स लीजिए, उनकी स्ट्रेटेजी सेम नहीं है. नो टू टॉपर्स आर फॉलोइंग सेम स्ट्रेटेजी. आपको टॉप 10 रैंक में एक ही साल के कैंडिडेट्स लीजिए, रैंक 1 की स्ट्रेटेजी रैंक 2 से टोटली डिफरेंट हो सकती है. रैंक 3 का बंदा जो हो सकता है 6th अटेम्प्ट का हो सकता है, और रैंक 4 का बंदा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकता है. और उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट सोर्स यूज किए होंगे, उनकी स्ट्रेटेजी अलग होगी. एक बंदा ग्रुप डिस्कशन में बिलीव करेगा, दूसरा बंदा लाइब्रेरी में बैठ कर टेस्ट पेपर्स अटेंड करने में बिलीव करेगा, तीसरा बंदा विल हैव वेरी लिबरल और फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी, जो हो सकता है विथ टाइम, जो भी टेस्ट सीरीज के जो भी इवेल्युएशंस आ रहे हैं, जो भी कमेंट्स आ रही है, उनके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करता रहेगा. तो इवन यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल. आप रिजिड नहीं हो सकते, या मैं आपको एक ऐसा मंत्र नहीं दे सकता कि भाई ये मंत्र की तुम 111 जाप करो और प्रीलिम्स में मेंस में हो जाएगा. वैसा कोई मंत्र नहीं. आपको टाइम के साथ, सी दिस एग्जाम इज अनप्रेडिक्टेबल, तो आपको भी बहुत डायनामिक होना पड़ेगा, बहुत डेक्स्ट्रस होना है. यू डोंट नो कि उधर से कैसी गुगली आने वाली है, तो यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल. एनी अदर क्वेश्चन? How much time is required daily for this program to be effective? See, this discussions will be 2 to 2.5 hours. आप अपनी तरफ से जो भी आपका रेस्ट ऑफ द टाइम, आपके पास 22 घंटे 21 घंटे बचते हैं, अपना एक बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाइए. जीएस और ऑप्शनल की रीडिंग्स के लिए बराबर टाइम दीजिए, मैं कहूंगा. What will be required in our part in GS if we join program, as in what else are we required to do besides attending the sessions and revision? आपकी जैसी प्रिपरेशन चल रही है, आप वैसी प्रिपरेशन कीजिए. आपने जो भी सोर्स पहले से सोचा हुआ है वो सोर्स पढ़िए. आपने जो भी नोट्स बनाए हुए हैं वो नोट्स बनाइए. आपको हर दिन न्यूज़पेपर भी पढ़ना है. कभी भी ये मत सोचिए कि क्लास में जाके न्यूज़पेपर का एक क्वेश्चन डिस्कस होने वाला है तो मैं एडिटोरियल स्किप कर देता हूँ. आपकी जो खुद की थिंकिंग खुद से बनाने वाला पार्ट है, वो आपको खुद ही बनानी है. सी, वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू अ बिल्डिंग. व्हाट वी आर ट्राइंग टू टीच यू इज टू मेक ब्लॉक्स. अगर आपको ईंट बनाना सिखा दिया तो उसके बाद आप ताजमहल बनाओ या लाल किला बनाओ, वो आपकी पसंद के अकॉर्डिंग है. आपको ईंट बनाना हम सिखा सकते हैं, ब्रिक बनाना सिखा सकते हैं, ना कि आपको कोई ताजमहल देने वाले. आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जैसा आपको किला बनाना है वैसा बनाइए. विल इट बी देयर फॉर एवरी डे? ना, हर दिन नहीं होगा. सप्ताह में 4 दिन, ओनली 4 days a week. अगर जरूरत लगी, इफ द फैकल्टी और आर टीम और आर एस्पिरेंट्स फील दिस नीड कि हर दिन हमें कुछ, या इस वीक में कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस करना है, या आपकी जो जो ट्रूस वाले पीरियड के लिए कुछ आपको दूसरा मोरल सपोर्ट चाहिए, या प्रिपरेशन के दौरान फिर से मोटिवेशनल सेशन चाहिए, बूस्ट चाहिए, किसी पर्टिकुलर पेपर में आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए सेशंस अरेंज कर सकते हैं. वी विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर यू.
For modern history along with spectrum, which book to follow? And polity, do one need to follow Subhas Kashyap for mains? See, I am not going to vouch for any particular book, क्योंकि होगा क्या अगर मैं कहूंगा कि आपको सुभाष कश्यप के लिए से फॉर एग्जांपल घोष पढ़नी है सुभाष कश्यप की जगह, या आपको पॉलिटी में सो एंड सो सर का मटेरियल बहुत अच्छा है, आपको वही पढ़ना है, कोई एक सिंगल ऐसा सोर्स नहीं है यूपीएससी का जहां से आप हर आंसर लिख सके. व्हाट यू हैव टू डू इज कि सिलेबस के हर टॉपिक को कहीं ना कहीं से कवर करें. कुछ चीज हो सकती है जो आपको न्यूज़पेपर से कवर करनी होगी, तो वही जो सेलेक्टिव रीडिंग होती है ना, फाइंडिंग दिस ग्रेन आउट ऑफ द शेफ, वो करना है. कोई भी एक बुक कवर टू कवर नहीं पढ़नी है. दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एग्जाम. बहुत ऑनेस्टली आपसे शेयर करता हूँ. along with spectrum, which book to follow for modern history? सर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर आपने अभी तक स्पेक्ट्रम ही पढ़ी है तो मैं आपको कोई दूसरी बुक पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा. आप स्पेक्ट्रम ही पढ़िए, प्लस क्लास के अंदर जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में क्वेश्चंस डिस्कस होंगे उन क्वेश्चंस से, या कोई आप एडिशनल टेस्ट पेपर्स लिख रहे हैं वहां से आप अपना नॉलेज को बिल्ड ऑन कर सकते हैं. आई वोंट से दैट स्पेक्ट्रम के अंदर आप दुनिया के हर सवाल का जवाब है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, ऐसा नहीं है. आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, उस अंडरस्टैंडिंग से आप आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं वो वी विल डिस्कस इन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन. प्लस उसके एडिशनल आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, दिस विल कम थ्रू वेरियस रीडिंग्स. आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, कुछ लोग अभी भी एडमेंट रहेंगे वो कंपाइलेशंस ही पढ़ेंगे, वो मोटी मोटी पीली पीली किताबें वही पढ़नी है तो आप वो भी पढ़िए. आई एम नॉट अगेंस्ट दोस किताबें, बट दीज शुड स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन योर आंसर्स. Sir, what will be timings in a particular day? See, about the timings, we will inform you very soon. We will have to look about that whether our other batches how they are assigned timing and all. लेकिन 2 से 2.5 घंटे का वेट होगा. Can I wait for results for joining this program? See, what I would suggest is आप वेट क्यों करेंगे? At max आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा जो ये कोर्स फी होगी वो वेस्ट हो जाएगी. My personal idea behind such question is आप जब भी अपने करियर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर बाइंग ए बुक और सोच रहे हैं यार 1000 रुपए की किताबें खरीदूं या नहीं खरीदूं, बुक्स फॉर एन यूपीएससी एस्पिरेंट आर ऑलवेज अ गुड इन्वेस्टमेंट. if you are investing into a course which you think it is going to help you in future, don't think twice. एक बार में इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा है. दूसरा, इसकी इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है. इसकी कॉस्ट हमने 50,000 45,000 नहीं रखी है. इट इज as far as I know, even you will see on the website, it is less than 20,000. So 20,000 is not a big deal if it is going to help you a lot in mains exam. क्योंकि कई लोग मेंस लिखने को तरस जाते हैं, एक बार लिख लिया उसके बाद मौका नहीं मिल रहा है. अगर आपको मौका मिला है तो it's 15K sir. Yeah, it is 15K plus GST. We believe in paying taxes to government. आपसे अकाउंट में पैसा लेंगे. हाँ, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? कैन आई वेट फॉर रिजल्ट? तो आपको वेट नहीं करना चाहिए. दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट. अगर आप फिर भी करते हैं तो इट इज टोटली योर चॉइस. सर, आई एम गोइंग टू अपीयर फॉर 2021, शुड आई रजिस्टर माई सेल्फ? अगर आप 2021 के लिए अपीयर कर रहे हैं और आपको अपनी प्रिपरेशन इतने विगर के साथ, आपके पास इतना मोटिवेशन आप कलेक्ट कर चुके हैं, इतनी एनर्जी के साथ आप प्रिपेयर करना चाहते हैं कि एक बार आप 2020 की मेंस के साथ पैरेलल घर बैठकर लिख कर देखिए आंसर्स, तो सर्टेनली आप ये कोर्स ज्वाइन कीजिए. यू विल सी द बेनिफिट. आप यू विल हैव एन फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज कि आप पहले लिखना चालू कर रहे हैं. जो 2021 वाला क्राउड है, इट इज स्टिल इन दिस प्रीलिम्स मोड, या आप अपनी बुक लिस्ट ही बना रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं. Sir, many of us have wasted lakhs earlier in famous coachings. Maybe that's why. That's why. Where is this question? We are careful in investing money. See, if you were not careful while wasting money, then you should definitely not be careful while investing money. अब केयरलेस होकर इन्वेस्ट कर दीजिए अगर आपने वेस्ट केयरलेस होकर किया है, और ये बहुत बड़ा सम नहीं है किसी के भी लिए. This is what I think. Sir, I missed some part of the conversation where I can get more details about the program. So if you have missed this conversation, I'll ask office to put this conversation on YouTube if we have recorded. Yeah, we have recorded this lecture. We will put this on YouTube. You can certainly. Okay, Priya. Fee has been answered. So if you have any other question for me or for Mridul sir,
or about this course, you can just address it accordingly. Even sir is here with us to answer your questions. Many institute also give same assurance. How to judge? Ethical dilemma में आप. हाँ Yeah. उत्पल, I agree dear. Today in fact I get confused when I go into the YouTube, right? So many lectures are coming on daily basis. In fact I get confused that how aspirants would deal with it. Everyone is coming with the lectures and all, and somehow I am not that willing to put everything on YouTube, because I believe aspirant gets confused. So I say go with your instincts and follow one institute for one thing. If you are following one institute for optional, take maximum guidance from that institute. Only if you find out that that institute is not worth giving you advice, only then change the mentor or the faculty. But talk to faculty, ask them for some personal guidance. Every faculty can take out some time. I agree, everyone has busy schedule, but they can take out some time to guide you, right? In fact, if you want to join any program, go with your strengths. Do some Reiki, find out about the program, do some thinking process, think through it, do some brainstorming before joining brainstorming program, right? Then join some program and then go with the strengths. Then do not think about any other institute, right? अब देखो एक चीज, it was a lovely session. Okay, that's great. Just last word from my side. Sachin, if you want to join for 2021 test program, देखो, this is not test program. They let let me tell you the difference between a test series program and this program, right? Or let's say brainstorming, and if you people are joining anywhere, let's name it X program, right? But this program is acting as a relevant content builder for some static parts, important current affairs topic. This is there, right? Now we gave you the question, you did the brainstorming on your behalf first, then you wrote some points. As we just discussing, I was asking you some question, तुमने कुछ points लिखे, we think through it, फैकल्टी ने कुछ पॉइंट्स दिए कि ऐसा इंट्रोडक्शन हो सकता था, ये स्ट्रक्चर हो सकता था, लेकिन स्टिल अभी तुमने 3 घंटे में कैसा टेस्ट आंसर लिखा है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इवेल्युएटेड. देखो एक प्रोग्राम ना एक चीज के लिए बन सकता है, राइट? टेस्ट सीरीज का पर्पस क्या है कि जो तुमने आंसर्स लिखे, क्या वो यूपीएससी उन्हें फेवरेबली मार्क करेगी या अनफेवरेबली मार्क करेगी, हम ये बताने वाले हैं. आंसर्स विल बी इवेल्युएटेड. यहाँ पे रेलिवेंट कंटेंट मिल जाएगा, एक अच्छा knowledge base बन सकता है. So objectives are different, and I agree dear, today as I told you, the tuition fees is going up, and that is why NPAs are going up, right? I agree, preparation is becoming little bit expensive, but if we have to run something, you all know, you all are mature enough, there is a principle of economy that works behind. We also have to work for that, right? But if you go by the intention is always to help you all, right? So we are not charging something. If it would have been in our capacity that we could have run it, if I would have been the, let's say, the legacy of some rajas and maharajas, I would have got the wealth from those people, I would have run it for free, right? Why? Because I knew I can sustain it, right? Because we should not do something which we could not sustain in life. Okay, and same goes with your preparation. If you cannot sustain some optional, you should not have emotional baggage to remain with that optional. It could be any optional, it could be engineering optional, mathematics optional. People remain, engineering students remain emotionally attached with science optional. In fact, even after failing 3-4 mains, at least change optional in last few attempts.
if you are not able to clear, you are seeing that you are not able to score good marks in optional, at least apply some mind. This is the question of career that we are working together, right? और छोटा सा एग्जाम्पल तुम्हें दे रहा हूं, देखो यूपीएससी फिलोसफिकल टॉपिक दे रही है, सर जस्ट सेड स्मॉल इज ब्यूटीफुल. मान लो ये ऐसे टॉपिक आ गया, राइट? व्हाट वुड यू राइट इन दिस? टेल मी. देखो यही है रैंडम ब्रेनस्टॉर्मिंग. कैन यू थिंक थ्रू abstract topics? Can you think through vague topics? Can you think through unseen topics? Because अगर मैं तुम्हें बता दूं कि भाई 5 क्वेश्चन ये हम डिस्कस करने वाले हैं, everybody would try to read something on that, but can you think on some questions which you have not come across, right? So small is beautiful आता है, पहले तो वहां पे आधे तो वैसे ही ढेर हो जाएंगे कि भाई क्या लिखें. फिलोसफिकल ऐसे में यही प्रॉब्लम है, ये समझो. यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी फॉर डाइवर्स एप्लीकेशन, वेरी गुड. समझ गए, नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर दी तुमने, वेरी गुड. एनीथिंग एल्स? 2 minutes, okay? We cannot spend 1 hour. Small is simple, simple is less complex, simplicity is ultimate. ठीक है. In simplicity lies the essence of life. ठीक है. In simplicity lies the essence of life. Neutrinos make up universe. I get dear. Small is beautiful. Technology wise हमने सब कुछ डाल दिया, नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिनोज, then neutrons, then your atom, everything. Simple step can solve bigger problem. Good. Problem solving में डाल सकते हैं. बूंद से घड़ा भरता है, right? Therefore smaller candidates, small virus crushed humanity's ego. So small beautiful कहाँ है? उसमें तो small is ugly. वहां पे small is ugly. Although we have got another aspect of the coin, that small is not only beautiful but small can ugly as well, right? Simple living, high thinking, good. Smaller cabinet, be it political, economical, social, environmental problem. Governance is better in small, right? What is that cliche? Minimum government, maximum governance, right? It's philosophical. Governance is better in a small. Can you think of Bhutan here? Happiness index. The size of the country doesn't matter as far as the people living there are happy. They are satisfied about life. अरे give me some real life examples, right? अब तो सब states के example दोगे. हाँ बिल्कुल, Scandinavian countries. So the size of the country doesn't matter as far as the government and the governance, or the ruler and the ruled. The gap between the ruler and the ruled is minimum, right? And which is evident from the example of Bhutan, where the happiness index is by far maximum across the world, right? Or which gave the concept of happiness index to the world. Then perhaps we can very well say small is beautiful, right? Then give the example of the bigger country where where happiness people are making. What else you can give? People are making distance from happiness. Capitalism. No doubt capitalism is an ideology. चाइना का बिल्कुल दे सकते हैं. Seed of positive attitude brings coherence, बिल्कुल, among a group. Productivity of people, connect among people. Seed breed flowers of beauty. Nice. Small is unique. Uniqueness brings diversity. India, unity in diversity, right? Definitely we can. Smaller states, right? India is a collaboration of the smaller plus, in fact, the bigger state, and the federal, the essence of the federal principle lies when we can exist cooperatively and collaboratively rather than in a conflictual federalism. देखो फेडरलिज्म गवर्नेंस से आ गया, राइट? फिर कितने डायमेंशन होते हैं? जैसे ऐसे के भी ना डायमेंशंस होते हैं. जैसे एक तो हमने पता ही है हमें कॉमन, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में लिखेंगे स्मॉल इज ब्यूटीफुल क्या हो सकता है, राइट? मटेरियलिस्टिक वे एंड हैप्पीनेस, इसको कनेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल, राइट? वी टेंड टू इग्नोर स्मॉल थिंग्स इन आवर लाइफ व्हिच कैन एसेंशियली ऐड वैल्यू. एग्जैक्टली, राइट? वी शुड टेक
we should take, or we should rather not ignore small things in life. तो ये अब देखो, ये यही होना है ब्रेनस्टॉर्मिंग में बेसिकली. Closer gap between values and actions, better is the mental balance. Perfectly. आए ना, हल्का सा you got an idea how to spread. Now you will spread in the exam as well, right? Exactly. A small act of helping anyone, any needy person in life, wherein a collector could have helped, wherein a constable could have helped. Today, social media is full of these examples. Newspaper is full of these examples. Sonu Sood, right? What Sonu Sood did during the pandemic, a very small act of sending the medicine to the to some far off family, even which is in no way directly having a connection with him. A small gesture of kindness, of compassion, and of empathy can make life beautiful. तो अब यही तो लिखेंगे philosophical essay में. This is how we need to spread from smaller areas to bigger areas. Principle of reciprocity, right? अब फिर इतने प्रिंसिपल लेके आओगे. पंचायत राज को लेके आ सकते हो, लोकल गवर्नमेंट के, सेल्फ गवर्नमेंट के लेके आ सकते हो. द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नीड्स लोकल सॉल्यूशन. When you have a top down ideology that the solution is coming from the central government to the localized area, to the panchayat level, perhaps there will be the disconnect between the problem and the solution, right? But if by the way of जो हमारा पंचायती राज एक्ट था, उसके थ्रू if we will empower the panchayat would become the linchpin in the model of governance, or rather good governance. So that is there. Now you people are giving diverse ideas, so this is good. ठीक है? Sometimes a small mistake can make blunder in life, or it can ruin the life. Little act of use social media to give earning. तो देखो यही है. कुछ लोग क्या होंगे वहां पे वन साइड और वन डायरेक्टेड ऐसे लिखाएंगे, वहां पे फिर नंबर थोड़ा कम आ जाएगा, और कुछ नहीं होगा. नंबर जरूर आएगा. जीरो नहीं मिलता, देखो किसी को जीरो तभी मिलता है जब ब्लैंक हो, राइट? स्मॉल इज ऑल्सो a sign of powerful, not a sign of weakness. We can say that, right? So in fact, Gandhi ji, who was not physically strong but could move the biggest empire or the largest empire on earth in those times, then we can perhaps say, in fact, we should not judge. This is how you can conclude. So we should not judge any person, any act, or anything by the size of the let's say, or the physical posture of the person. ऐसे करके conclude किया जा सकता है, because the enormity lies in the vision of the individual. Enormity lies in the vision of the idea, right? Indomitable will, exactly. ठीक है? So this is all. Every or program join karo, nahi karo, have confidence in you. I have shown you how clearing UPSC final cutoff by 2 marks can land you there in a very comfortable zone. A small seed turns into a larger tree, already said. Very nice, Tinku, right? Chetan sir wants to come in. Yeah, somebody just asked, like, when are we going to give you detailed schedule? It is available on our website already.